Yes, good evening to all of you friends. You all can unmute yourself Good and evening, Good ma'am. evening. good evening, Evening, good ma'am. evening, Good good evening, Good evening, ma'am. evening. good 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 evening, evening. evening. friends. Good evening, good evening. Good evening to all of you. Thank you all of you for joining. I am not able, पता नहीं उस दिन कैसे हो गया था, live हो गया था. Today I'm not able to go live, and that option I'm not getting on my phone also. I really don't know. I But forgotten. we are seeing you and your voice is clear. I'm not Thank talking you so about much. here. I'm talking about going live on YouTube. Oh, YouTube. Uh-huh. Yeah. Never mind. ठीक है. So we have another 15 minutes before someone can enter. After that, then entry will also close. And sorry, they will not be able to connect on the YouTube also because it's not going live today. So, चलिए. Thank you so much everyone who has joined till now. And anybody wants to share any experience after we finish the class that day? उसके बाद कुछ you want to share? Utpala ji, please mute करिए अपने आप को. Yeah, anyone wants to talk or say anything? We'll spend a few minutes more on this and then we will start with our session today. कोई क्वेश्चन भी अगर हो तो you all can ask, otherwise we'll start straight away. ठीक है? Utpala ji, something is wrong with your this thing. You Yeah, are unmute can't हो hear. जाते आप unmute हो जाते हो बार बार. I can't hear. अरे बाबा, then you don't have to unmute. You are unmuting yourself and then you are. Unmute किया मैंने. Are I you have able? unmuted. आपको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? हाँ, आपका आवाज सुनाई दे रहा है. तो क्या नहीं सुनाई दे रहा? आप म्यूट रखिए ना अभी अपने आप को. तो अभी कुछ नहीं. बार बार वो आ जाता है माइक पे लाइन. माइक पे लाइन आने दीजिए. हाँ, आपको सुनाई दे रहा है, एज लॉन्ग एज दैट इज फाइन. ठीक है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ फ्रेंड्स. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन एंड देन वी विल सी. It's quite disappointing. I don't know, somehow it is not going on YouTube. So how do we manage with that? Anyways, again, oh god. हाँ, तो हम लोगों ने उस दिन कहाँ तक किया था, if you all remember, till पेज यहाँ पे 3 था. sorry, It we had read was my reason for writing writing. this book. Okay. Yeah, do you know answers? Yeah, one sec. Yeah, so we had read my reason for writing this book. इसमें we had read the first paragraph. I'm going to do a quick run through of that paragraph also. What motivated me to write this book was a deep desire to share with others the answers I have discovered to these and many similar questions. I have tried to explain the great fundamental truths of your mind in the simplest language possible. I believe that it is perfectly possible to explain the basic and fundamental laws of life and of your mind in ordinary, everyday language. You will find that the language of this book is that used in your daily papers and current periodicals in your business offices, in your home, and in the daily workshops. मतलब आम बोलचाल की भाषा में. इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ बहुत ही वेरी सिंपल इंग्लिश.
which is very easily understandable. That is what he's trying to tell us, that I have tried to write in a very simple and understandable language. So that's what I urge you to study this book. Ab now yahan se we have to, till that we had read till that first paragraph, till there we had read on our first class during our first session, and now today onwards we are starting from this place, right? One sec. Yeah. I urge you to study this book and apply the techniques it outlines. As you do, I am absolutely convinced that you will lay hold of a miracle working power that will lift you up from confusion, misery, melancholy and failure. तो ये वाला what he is trying to say, that I have described whatever techniques and methods that I have discovered during his lifetime and which has brought him results, जो यूज़ करके उसने अपनी subconscious mind की power को tap करके ही the results that he got, he is trying to share them with us. And once we understand them, understand these principles and use them methodically, बार बार ये बाद में आके बोलेगा कि हमको we most of us do pray every day, every day करते हैं कि नहीं करते, but जब प्रॉब्लम आती तब तो डेफिनेटली करते हैं ना, प्रेयर्स हमारी होती है, बट हमारी वो प्रेइंग एंड एक्चुअल प्रेइंग जैसे ही इज गोइंग टू टीच अस, इज दैट same, or is that the way it should be done, or how it should be done? That is what he is going to teach us. And once ये अगर हमने सीख लिया और उसको उस तरह से करना सीख लिया, that he has done and got the results with, तो उसके बाद he is saying like we will lay hold of a miracle working power. A miracle working power हमारी क्या है? That divine intelligence के साथ हमारा connection, that power of our subconscious mind, जो कि हमें उस डिवाइन पावर के साथ, उस डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ ऐसे कनेक्ट कर देता है जिससे कि वो डिवाइन इंटेलिजेंस जिसने ये एंटायर क्रिएशन क्रिएट किया है, सारी की सारी गैलेक्सीज है, यूनिवर्स है, सब कुछ उसी का क्रिएशन है, एज वेल एज हमारी जो पूरी बॉडी का क्रिएशन है इज ऑल्सो डन बाय दैट डिवाइन इंटेलिजेंस. दैट डिवाइन इंटेलिजेंस ओनली हैज क्रिएटेड अस एंड ऑल्सो रिसाइड्स विद इन अस, है ना. तो उसकी जो उसकी इतनी बड़ी मिराक्युलस पावर है, तभी तो उसने इतना कुछ क्रिएट किया ना. दैट मिराक्युलस पावर के साथ हम कनेक्ट कर पाएंगे वंस वी लर्न टू अंडरस्टैंड दीज मेथड्स, एंड वी विल बी एबल टू ले होल्ड ऑफ दैट मिरेकल वर्किंग पावर दैट विल लिफ्ट यू अप फ्रॉम कन्फ्यूजन, मिजरी, मेलंकली एंड फेलियर. तो कितने सारे हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या हमारे सबकॉन्शियस माइंड के जितने भी पैटर्न्स हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं, उन सब से हमें निकालने में ये वाले पैटर्न्स, ये वाले मेथड्स हमको जो ही सिखाने वाले वो हमको हेल्प करेंगे. वाई वी विल अचीव दैट मिराक्युलस वर्किंग पावर के साथ हमारा कनेक्शन हो जाएगा. तो व्हाट काइंड ऑफ कन्फ्यूजन्स, जैसे दे सेड कि वन सेक, So your subconscious mind will aligns with universal intelligence, जो कि then life begins to respond differently to you. जब हमारा उसके साथ connection हो जाएगा. When your conscious mind, मतलब conscious mind से जो हम सोच रहे हैं, ये सकीना विजलानी जी भी, अब लोग, I will please request you guys, एक बार आप लोग enter होते हो तो बार बार on off मत करो, आना जाना, then I will only continue doing this. मेरा फिर इधर में आएगा नहीं ध्यान. बार बार आप लोग जाओगे एंड आओगे, बार एंटर करोगे एंड आओगे जाओगे, देन इट बिकम्स टू मच फॉर मी टू हैंडल एवरीथिंग, राइट. सो व्हेन यू कॉन्शियस माइंड, मतलब हमारे कॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स हैं, चॉइसेस हैं, बिलीव्स हैं, जो भी हम जो कॉन्शियसली सोच रहे हैं या हमारे बैक ऑफ द माइंड भी चल रहे हैं, वो और सबकॉन्शियस माइंड के जो हमारे फीलिंग्स हैं, पैटर्न्स हैं और डीप इम्प्रेशंस हैं, when they come in harmony, वो उसके अंदर harmony, what he is saying, no, you will lay hold of that miracle power. That miracle power will create that harmony between these two powers of ours, conscious mind की and subconscious mind, इन दोनों के बीच में एक harmony आ जाएगी, जिसकी वजह से something powerful happens. That means life begins to respond differently to you. कैसे differently? It will
लिफ्ट अस अप फ्रॉम कंफ्यूजन, मिजरी, मेलंकली एंड फेलियर. कंफ्यूजन्स मतलब कई तरह के कंफ्यूजिंग बिलीव्स हैं हमारे माइंड में, कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स हैं, बहुत तरह के लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उन सब से हमको निकलने में हेल्प करेगा. मिजरी मतलब हमारे अंदर हम लोग जो फियर्स एक्सपीरियंस करते हैं, दुख एक्सपीरियंस करते हैं, प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस करते हैं हमारी लाइफ में, तो उनका क्या कारण है, उन सब से भी निकालने में हमें हेल्प करेगा. एंड ऑल्सो द फेलियर्स क्यों होते हैं? सबकॉन्शियस एक्सपेक्टेशंस ऑफ लैक और लिमिटेशन. फेलियर्स मेनली यही है कि वी डोंट ट्रस्ट कि हम सक्सीड हो सकते हैं लाइफ में, है ना. हमारा लाइफ में हम फेलियर्स एनकाउंटर क्यों करते हैं? व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी डू वी हैव? हमको क्यों फेलियर्स मिलते हैं? वाई? बिकॉज वी डोंट बिलीव कि वी कैन सक्सीड. तो वो एक्सपेक्टेशंस बैक ऑफ द माइंड में हमारा ये एक पैटर्न ही बना हुआ है, एक कंडीशनिंग बन गई है दैट वी विल नॉट बी एबल टू सक्सीड. बिकॉज सक्सेस मीन्स एक लिमिटेड अमाउंट तक सक्सेस तो ठीक है, उसके बियॉन्ड की सक्सेस इज मेंट फॉर अदर्स, इट इज नॉट मेंट फॉर मी. दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग एंड थॉट वी हार्बर इन आवर माइंड्स. तो इसकी वजह से ये जो सब है, तो इस वाली चीज़ों को फॉलो करके व्हाट ही इज गोइंग टू टीच अस, उनको फॉलो करके ही सेइंग दैट यू विल बी एबल टू ओवरकम ऑल दीज कंफ्यूजन्स एंड मिजरीज एंड फेलियर्स एंड मेलंकलीज इन योर लाइफ, एंड इट विल गाइड यू टू योर ट्रू प्लेस and solve your difficulties and sever you from emotional and physical bondage. So, and it will drive you to it will guide you to your true place of being the creator by connecting you to infinite divine intelligence. हमारा true place क्या है, हमारी true ability क्या है, true power क्या है, जिसके बारे में हम लोगों ने द पावर बुक के दौरान भी कई बार हमने पढ़ा, राइट. तो हमारी उस पावर के साथ हम कनेक्ट कर पाएंगे जब हम ये सब कुछ सीख लेते हैं. एंड देन सॉल्व आवर डिफिकल्टीज एंड सेवर अस फ्रॉम इमोशनल एंड फिजिकल बॉन्डेज एंड प्लेस यू ऑन द रॉयल रोड टू फ्रीडम, हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड. रॉयल रोड क्यों बोल रहा है कि रॉयल रोड्स क्या होते हैं? एकदम स्मूथ, जहाँ पे आपके सामने कोई कुछ आ ही नहीं सकता. एक रॉयल प्रोसेशन अगर निकल रहा हो तो कितनी प्रिपरेशन होती है, राइट, है ना. सारे के सारे लोग भाई दूर से पहले कितने घंटों से क्लियर कर दो वो रोड. तो वैसे हमारी लाइफ का रोड क्लियर हो जाएगा इफ वी आर एबल टू कनेक्ट विद दीज पावर्स व्हाट ही इज गोइंग टू टीच अस, राइट. तो उस तरह की स्मूथ हो जाएगी हमारी लाइफ, एक रॉयल वे में हम लोग रह पाएंगे. उस तरह का एफर्टलेस पाथ एंड नेचुरल पाथ एंड क्लियर पाथ हमारी लाइफ का बन जाएगा, वेयर वी विल बी एबल टू अचीव एंड क्रिएट वट एवर वी वांट and road to freedom, happiness and peace of mind. So this miracle working power of your subconscious mind this miracle working power of your subconscious mind can heal you of your sickness, making you vital and strong again. In learning how to use your inner powers, you will open the prison door of fear and enter into a life described by Paul as the glorious liberty of the sons of God. तो जब हम इसका this miracle working power of your subconscious mind can heal you of your sickness, क्योंकि that is the power of divine जो हमारे अंदर सबके अंदर है. एज आई एम सेइंग, ममता मुखी जी आप भी एक बार बार आ रहे हो जा रहे हो, प्लीज बी इनसाइड द रूम, बार बार आना जाना प्लीज मत कीजिए. 2 minutes more, after that I am not going to be able to allow anybody entry. I'm sorry but I'll have to stick to this rule, okay? So in learning how to use your inner power, oh God, I'm really not able to focus, this amount of coming and going happening, I'm really not able to focus at all. It's terrible. In learning how to use your inner powers, you will open the prison door of fear and enter. So prison door of fear क्या है? Prison हमारे लिए क्यों बोला है इस बात को? Your thoughts, your inner powers, हमारी inner powers को जब हम यूज़ करना सीख लेंगे, कौन सी इनर पावर्स हैं? हमारे थॉट्स जो हमारे कॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं, फीलिंग्स एंड बिलीव्स जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं, एंड हमारी अवेयरनेस एंड इंटेंशन. यू ऑल आर गेटिंग कि मेरा भी माइंड जैसे इधर उधर भाग रहा है, आप लोग भी अभी नहीं फोकस कर पा रहे होंगे, राइट.
बिकॉज आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. तो आप लोग भी, आई होप वी ऑल कैन फोकस नाउ प्रॉपरली. सो ये जो हमारी इनर पावर्स हैं, जितनी भी हमको दिया है यूनिवर्स ने, हमारे थॉट्स की जो हमारे कॉन्शियस माइंड से आते हैं, फीलिंग्स एंड बिलीफ जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, एंड हमारी अवेयरनेस एंड इंटेंशन क्रिएट करने की पावर. इंटेंशन क्या है? जो थॉट हमको पहले ही आ जाता है, फर्स्ट कि या हम इंटेंशनली क्रिएट करते हैं या ऑटोमेटिकली जो बिलीफ हमारा क्रिएट हो रहा है, जो हमारे माइंड में एक इंटेंशन की तरह काम कर रहा है. तो उस बिलीफ को, जो लिमिटिंग बिलीफ्स अभी तक हमारे एक इंटेंशन की तरह काम करते थे, एंड दे यूज टू सैबोटाज आवर ग्रोथ एंड सक्सेस एंड वट एवर वी वॉन्टेड टू अचीव, नहीं हम अचीव कर पाते थे. बट अभी उसको अगर हम एक इंटेंशनल वे में अगर यूज करें एंड क्रिएट वट एवर न्यू वी वॉन्ट टू क्रिएट इन आवर लाइफ, बिकॉज नाउ वी रियलाइज कि हमारे अंदर वो पावर है कि हमारे थॉट्स जो ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हैं, उनकी वजह से हमारी लाइफ ऐसे क्रिएट हो रही है, आ रही है हमारे सामने जैसे कि आ रही है. एंड इफ आई एम नॉट लाइकिंग दैट, द मेजर पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग इन माई लाइफ, देन दैट कैन बी चेंज्ड. एंड ये चेंज कैसे आ सकता है? बाय क्रिएटिंग आवर ओन इंटेंशंस विद आवर अवेयरनेस एंड अटेंशन. मोस्ट पीपल आर यूजिंग दीज पावर्स अनकॉन्शियसली, है ना. और ये पावर्स हमारी अभी तक अनकॉन्शियसली ही यूज़ होती थी, चाहे वो कॉन्शियस माइंड के थॉट्स हैं या फीलिंग्स हैं. थॉट्स जैसे चल रहे हैं, जैसे कि बार बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारे जैसे थॉट्स ऑटो पायलट मोड पे चल रहे होते, तो उसी से कनेक्टेड फीलिंग्स पे भी हमारा माइंड चलता जाता है. एंड वी डोंट इवन रियलाइज कि हम ये फील कर रहे हैं, एजिटेशन, इरिटेशन या गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, छोटी छोटी बात पे, बड़ी बड़ी बात पे. इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन आवर माइंड्स, एंड ये हमको कितना बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है, हमारे लाइफ पैटर्न्स को इम्पैक्ट करता है, हमारी लाइफ में एक्सपीरियंसेस को इम्पैक्ट करता है. सो दीज इनर पावर्स को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, अनकॉन्शियसली कैसे यूज़ करते हैं? व्हेन वी आर इन्फ्लिक्टेड विथ फियर, देन वी क्रिएट मोर फियर, and when we are feeling lack, then we attract more lack. But when you learn to use them consciously, you shift from reacting to life to creating your inner state. जैसे कि मैंने अभी किया, अगर हम कॉन्शियस हो जाते हैं उस बात के बारे में कि मेरे अंदर में क्या चल रहा है और उसको मुझे कैसे इसको मुझे मेरे अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं, मेरे लिमिटिंग बिलीव्स क्या हैं, लिमिटिंग पैटर्न्स क्या हैं, उनको अगर मैं चेक कर पाती हूँ, पकड़ पाती हूँ, कैच कर पाती हूँ, देन उसको मैं रिप्लेस करने का, क्योंकि अगर यही थॉट्स की वजह से, बिलीव्स की वजह से मेरे लाइफ में ये एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं जो कि मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मेरे अंदर दैट मीन्स वो पावर है कि मैं इनको रिप्लेस करके नया भी अपने मन के हिसाब से क्रिएट कर सकती हूँ. देन यू विल ओपन द प्रिजन डोर ऑफ फियर. Fear is called a prison because it limits our perception, controls our decisions, and keeps repeating the same patterns. But here is the key. The door is not locked from outside, it is locked from inside by belief. मोस्टली हमारा फियर यहाँ पे स्पेशली क्यों बोला है, लाइक हमारा, आई डोंट नो वेदर यू ऑल विल रेजोनेट, हम लोग काफ़ी डरे हुए से रहते, कितनी बातों से हम लोग लाइफ में प्रोसीड नहीं कर पाते, प्रोग्रेस नहीं कर पाते, बिकॉज सम और द अदर फियर्स आर देयर एंड वी आर, जैसे इन्होंने बहुत ही अच्छा वर्ड यूज़ किया, वी आर एक्चुअली स्टेइंग इनसाइड अ प्रिजन विच इज़ द प्रिजन ऑफ फियर, एंड इट इज़ नॉट लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, इट इज़ नॉट लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड, सॉरी, इट इज़ नॉट लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड. एक प्रिजन होता है ना जो बाहर से बंद कर देते तभी हम अंदर में लॉक्ड होते हैं, ये वो प्रिजन है जिसकी हमने अपने अंदर से बंद किया है, एंड हम फिर अपने आप ही हमने उसको अपने अंदर को अपने आप को उस प्रिजन में रखा है, फियर के प्रिजन में रखा है, एंड हम फील करते हैं कि हम प्रिजन में हैं. इफ़ इट इज़ लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, हम कभी भी इसको खोल के अपने लिए अपनी फ्रीडम अनाउंस कर सकते हैं, अपनी फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं. तो ये फियर क्या क्या होते हैं? सोशल फियर्स हैं या हमारे किसी तरह की कंडीशनिंग के फियर्स हैं कि हमको कोई कुछ कह देगा या कोई कुछ हमको कैसा मानेगा, या हमको किसी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आई हैव टू बिहेव या परफॉर्म, उस तरह के फियर्स. अगर मैं नहीं कर पाई तो नहीं होगा टाइप्स, आई विल नॉट सक्सीड, या मेरे को प्रॉब्लम आ सकती है. तो दीज मैनी काइंड्स ऑफ फियर, अगर हम लोग अपने अंदर में जाएं, अगर पूरे दिन अगर चेक करें अपने आप को, सपोजिंग आई गिव यू ऑल अ टास्क कि कल अपने आप को हम लोग चेक करते हैं पूरा दिन कि आज हम अपने
पूरे दिन अपनी एक्टिविटीज़ को चेक करेंगे, अपने आप को चेक करेंगे, एंड वी विल सी कि हम कहाँ पे रुक जाते हैं, कहाँ पे डर जाते हैं और कौन सा ऐसा फियर है. विल गो डीप इनसाइड एंड फाइंड कि ऐसे क्या क्या डर हैं हमारे अंदर जो हमें सैबोटाज करते हैं, हमें रोकते हैं. कई जगह पे हम रुक जाते हैं, कई जगह पे उस फियर की वजह से हम कई बार नेगेटिवली रिएक्ट कर देते हैं. अगर कभी मैंने नेगेटिवली रिएक्ट कर दिया, देन आई गो एंड लुक इनटू इनसाइड माई सेल्फ एंड सी कि व्हाट वाज द रीज़न. क्योंकि कोई तरह का डर था, उस डर से मैंने अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को रोकने के लिए मेरे अंदर से ये रिएक्शन ऐसे निकल गया, ये गुस्सा ऐसे आ गया, है ना. गुस्सा इटसेल्फ इज नॉट गुस्सा. गुस्सा कम्स बिकॉज आइदर देर इज अ डर, आइदर किसी के तरह का दुख है या कोई डर है या कोई चिंता है जिसकी वजह से वो इतने डीप डर में मैं आ गई कि वो गुस्से का रूप ले लेता है, तब बाहर निकलता है. राइट. तो हम लोग अगर अपने आप को चेक करें तो कितनी तरह के डर हमारे अंदर में होते हैं और उन डरों का ताला कहाँ से बंद है? अंदर से बंद है. सो ये अंदर से बंद किया हुआ ताला भी हमारा खुल जाएगा व्हेन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दीज प्रैक्टिसेस व्हाट ही इज गोइंग टू टीच अस. So this door is not locked from outside, it is locked from inside. By what? जो हम बिलीव करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो मानते हैं, जिन बातों को बारे में हमने मान लिया है. अब हमारे अंदर में अगर कोई डर है, एक किस तरह का मैं डर की बात बताऊं. सपोजिंग कहीं पे एक सोशल गैदरिंग में जाना होता है तो कई बार हम मजबूरी में चले जाते हैं ना. मेरा एकदम मन नहीं है, राइट, कहीं जाने का एकदम इच्छा नहीं, बट हम डर में चले जाते हैं. वाई? नहीं तो लोग चार लोग चार तरह की बातें बनाएंगे. होता है ना इस तरह का. तो कितने सारे ऐसे ये छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं हम नहीं करना चाहते बट हमको करना पड़ता है, या अगर हम करना चाहते हैं हम नहीं करते हैं. वाई? बिकॉज वी आर स्कैर्ड कि वहाँ बाहर से रिएक्शन कैसा आएगा, है ना. तो ये हमने इस तरह के बिलीफ और मान्यताएं और इसके तरह के परसेप्शंस बनाए हुए हैं जिनकी वजह से ये फियर्स हमारे अंदर हैं, जिनकी वजह से हमारा लाइफ में हमारी प्रोग्रेस सैबोटाज हो रही है. एंड देन एंटर इनटू अ लाइफ. अब इन फियर्स से हम निकल पाएंगे एंड देन क्या करेंगे? एंटर इनटू अ लाइफ. यहाँ पे क्रिएट करने का वर्ड नहीं बोल रहा है. व्हाट ही इज सेइंग, क्या फिर से पढ़ते हैं इसको. इन लर्निंग हाउ टू यूज योर इनर पावर्स. इनर पावर्स जो हमने अभी पढ़ी, हमारे कॉन्शियस माइंड की जो थिंकिंग पावर है, सबकॉन्शियस माइंड की जो बिलीव करने की एंड फील करने की पावर है, और हमारी अवेयरनेस की और इंटेंशन क्रिएट करने की पावर है. सारी पावर्स जो हमारी इनर पावर्स हैं, इनको अगर हम राइट वे में यूज करते हैं, देन यू विल ओपन द प्रिजन डोर ऑफ फियर इनसाइड अस, जो कि हमारे बिलीव्स के ऊपर बेस्ड है. एंड देन एंटर इनटू अ लाइफ डिस्क्राइब्ड बाय पॉल. पॉल मीन्स गॉड के लिए बोल रहा है, भगवान ने जिसको बोला है. एंटर करेंगे मतलब एक लाइफ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वहां पे आप घुस पाओगे, वहां पे एंटर कर पाओगे. आप क्रिएट नहीं कर रहे हो. ऑल दैट मैजिकल ग्लोरियस लाइफ इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. वहां पे हम नहीं जा पा रहे क्योंकि अपने बिलीव्स की वजह से, अपने थॉट्स की वजह से हमने अपने आप को उस प्रिजन में बंद करके रखा है, जो कि हमने अपने अंदर बिलीफ की वजह से, अपने थॉट्स की वजह से, अपनी फीलिंग्स की वजह से खुद बंद कर दिया है. अपने अंदर को, प्रिजन को वहां पे बंद करके हम सोचते हैं कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा. कैसे अच्छा होगा? तुमने खुद को अपने रूम में बंद कर लिया, प्रिजन में बंद कर लिया, जेल में बंद कर लिया है. अब उसको खोलने की देर है. खोलो और उसके बाहर इट्स अ ह्यूज लैंड ऑफ भगवान का वो जो इतनी बड़ी क्रिएशन है, इतनी मैजिकल क्रिएशन है, ग्लोरियस क्रिएशन है, वहां पे जाने का रास्ता आपको मिल जाता है जस्ट बाय यूजिंग दीज प्रैक्टिसेस विच ही इज गोइंग टू टीच अस, है ना. एज द ग्लोरियस लिबर्टी ऑफ द सन्स ऑफ गॉड, है ना, दैट वी आर फियर. एंड फियर एक ये है कि एक तो ये भी फियर हमारा, अब हमको जब समझ में आता है कि वी हैव द पावर कि हम अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर सकते हैं, तो एक फीलिंग ऑफ लिबरेशन आता है ना कि यस, कि हम ठीक है, अभी तक जैसी भी लाइफ क्रिएट अभी तक जो आया है, दैट मीन्स इफ दैट इज माय क्रिएशन. अगर हम बार बार यही समझ रहे हैं कि जो भी हमारी लाइफ में हमारे सामने आ रहा है ये हमारा अपना क्रिएशन है, तो इसके बाद अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो बाद की जो फ्यूचर की लाइफ आने वाली है उसको क्रिएट करने की पावर भी तो मेरे हाथ में है. तो ये फिर अभी तक होता था कि हम लोग ऐसे ही जीते थे कि भाई लाइफ में जो आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, हमको वैसा ही फेस करना पड़ेगा, वैसा ही जीना पड़ेगा. बट नाउ these teachings are teaching us कि no, you have that power. That why? Because you are the creator of your life and everything that you are experiencing is the result of what you have created in your past. So now if you have created
miseries and melancholies and challenges and failures in your life which you are experiencing in your present because of what you have created in the past, of what you have thought and believed in your past, you have that power. By changing your thoughts and beliefs in this present moment, you can create a magical, miraculous and glorious life in your future by using the same beliefs. Different, उनको replace करके कुछ नया. Is my voice breaking? Someone can tell me please? Or is it okay with everybody else? आप लोगों के पास आ रही है? Can you all write? Is it clear or not clear? ओके है ना. तो जिनके पास नहीं आ रही है ना, तो वो लोग अपना प्लीज़ अपना ये नेटवर्क चेक कीजिएगा. ठीक है, क्लियर है, सबके पास क्लियर जा रही है. ओके, थैंक यू. ठीक है, तो वो वाला फियर से भी हमें ये मुक्ति मिल जाती है. अच्छा, अभी तक तो हम लोग इस डर में रहते थे कि पता नहीं मेरा प्रारब्ध क्या है, मेरा नसीब क्या है, मेरी डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है. तो डेस्टिनी इज नॉट लिखा हुआ कुछ भी. डेस्टिनी यू आर क्रिएटिंग एवरी मोमेंट. यस, यू हैव एज अ सोल प्लान आपने एक अपना ब्लूप्रिंट क्रिएट किया है अपनी लाइफ के लिए कि ये एक्सपीरियंसेस मेरी लाइफ में आएंगे. बट व्हेन वो एक्सपीरियंस आता है, उस एक्सपीरियंस के आने के बाद इस मोमेंट यू ऑल्सो हैव द फ्री विल. इस फ्री विल से आप कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे उस चीज़ को हैंडल करोगे, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, तब ये आपकी जो फ्री विल आप यूज़ कर रहे हो, इससे आपका नेक्स्ट मोमेंट डिसाइड हो रहा है, नेक्स्ट आपकी लाइफ डिसाइड हो रही है. तो नथिंग इज रिटन इन ब्लैक एंड वाइट. एवरी मोमेंट इट इज़ लाइक डायनामिक. योर लाइफ इज हैपनिंग डायनामिकली. आप इस मोमेंट जो सोच रहे हो, बिहेव कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो एंड डिसाइड कर रहे हो और क्रिएट कर रहे हो, वही आपका नेक्स्ट फ्यूचर होगा. सो येस्टरडे आई वाज आई जस्ट रेड समथिंग कि हर चीज़ जो हमारे लाइफ में आती है, एवरी एक्सपीरियंस, जो कि मैं बार बार बात करती भी हूँ, हमारे जो रेगुलर हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे साथ जो लगातार जुड़े होते हैं, आप लोग को पता है, जो मैं बार बार बात करती हूँ कि एक्सेप्टेंस, डीप एक्सेप्टेंस हर चीज़ की, कि जो जैसा जिस तरह से इस मोमेंट मेरे लाइफ में हो रहा है, उसको अगर मैं प्यार से एक्सेप्ट करती हूँ विद दिस थॉट दैट दिस इज़ माई क्रिएशन. जब मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरा क्रिएशन है, तो मेरे अंदर से सारी की सारी वो कंप्लेन, क्रिब करना, क्रिटिसाइज करना एंड फियर, ये सब खत्म हो जाता है ना. बिकॉज आई रियलाइज दैट माई पावर इज इन माई हैंड्स. अगर मैंने क्रिएट किया तो मैं फ्यूचर अच्छा क्रिएट कर सकती हूँ. और वो अगर एक्सेप्टेंस है और उसकी जगह जैसे डीप एक्सेप्टेंस आ गया, सारे के सारे आपके कंप्लेन्स. नहीं तो क्या होता, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आई तो पहला तो रिएक्शन क्या होता, डर. क्यों आ गया? एंड डर है, डर इन द सेंस, एक तो चिंता, डर इन द सेंस कि पता नहीं कब तक लास्ट करेगा, कैसे होगा, इसका रिजल्ट है कि नहीं, सॉल्यूशन है कि नहीं है, कैसे होगा, कैसे फ्यूचर चलेगा, कैसे लाइफ आगे बढ़ेगी, चाहे वो हेल्थ में हो, करियर में हो, मनी के एरिया में हो, मनी का कोई ब्रेकडाउन आ गया हो, या रिलेशनशिप का कोई ब्रेकडाउन आ गया हो. खिचड़ी, वी स्टार्ट कुकिंग खिचड़ी इन आवर माइंड कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा. बट इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू दैट क्या होगा का chaos, वी जस्ट एक्सेप्ट कि भाई मेरा क्रिएशन है, आई जस्ट एक्सेप्टेड द वे इट हैज़ कम एंड गिव इट माई लव एनर्जी, माई एक्सेप्टेंस एनर्जी. तो सारा का सारा व्हाट हैपन्स, पहले तो हमारे बॉडी में वो हमारे जो एक पहले हमारा केओस वाला जो स्टेट ऑफ माइंड आया था, जैसे ही वो चैलेंज आने से हमारे हार्मोन्स क्या ये हो रहे थे, रिलीज हो रहे थे, हार्मोन्स ऑफ कॉर्टिजोल एंड वट एवर द नेगेटिव इसमें स्टेट में जो हमारे स्ट्रेस क्रिएट करने वाले हार्मोन्स होते हैं, वो रिलीज हो रहे थे. द मोमेंट आई एक्सेप्टेड वेरी वेरी डीपली, क्या होता है, मेरी बॉडी, मेरा नर्वस सिस्टम काम डाउन हो जाता है. इट स्टार्ट्स, मेरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है एंड स्टार्ट्स रिलीजिंग हैप्पी हार्मोन्स लाइक ऑक्सीटोसिन हो गया, मेलेटोनिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया. तो वो जैसे ही आएगा, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी. नाउ बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, आपका एवरीथिंग स्टार्ट्स चेंजिंग. नाउ योर परसेप्शन चेंजेस, योर थिंकिंग चेंजेस. नाउ यू वेट कि ठीक है, देखते अब मेरे अंदर. एंड द मोमेंट यू आर इन दैट स्टेट, आप ये लाइटनेस की स्टेट में आते हो, पॉजिटिविटी की स्टेट में आते हो, कूलनेस की स्टेट में आते हो, आपके हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं. नाउ यू गेट दैट इंट्यूटिव पावर ऑल्सो. आपको वो इंट्यूटिव थॉट्स भी आएगी, इंट्यूटिव गाइडेंस भी आएगी, जो कि इनफैक्ट इंट्यूटिव गाइडेंस हमको हमारे एंजल्स, हमारे गाइडिंग एंजल्स, हमारे मास्टर्स एंड हमारे स्पिरिट गाइड्स हमारे साथ हमेशा होते हैं और वो हमें गाइड कर भी रहे होते हैं. बट बिकॉज हमारे माइंड में इतने सारे कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स और ये सब चल रहे होते हैं ना, कि हम उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, उनको टैप इन नहीं कर पाते.
तो द मोमेंट वी रिलैक्स एंड एक्सेप्ट एंड सिट बैक कि ठीक है साइलेंस में बैठते हैं देखते हैं क्या होगा, देन यू विल सी कि आपको सॉल्यूशन के थॉट्स भी आएंगे, खुद आएंगे, या सॉल्यूशंस विल स्टार्ट अपेयरिंग इन योर अराउंड इन योर विसिनिटी, या आपके किसी न किसी में कोई आपके सामने कोई ऐसे आ जाएगा, या कोई ऐसा थॉट आ जाएगा, या ऐसा कोई वर्ड कहीं से आप सुन लोगे, चाहे वो न्यूज़ में सुन लिया, किसी बुल बोर्ड में देख लिया, आपको लगेगा वाह दिस इज द सॉल्यूशन, इससे मैं आगे निकल सकती हूँ, इससे आगे मैं जा सकती हूँ. सो releasing the miracle working power. So this is what they said now, ki fear, in learning how to use your inner powers, you will open the prison door of fear and enter into a life described by Paul as the glorious liberty of the sons of God. ठीक है, one second. सो ग्लोरियस लिबर्टी का मतलब देन व्हेन यू अचीव दैट, यू नो, जैसे कि मैंने ये कहा कि अगर एक बार एक्सेप्टेंस की फीलिंग भी अगर मेरे अंदर आ गई, यू फील सो लिबरेटेड ना कि नाउ यू आर इन दैट स्टेट ऑफ कामनेस, एक फ्रीडम की फीलिंग आती है. भले कितना भी दुख हो, भले कितना भी चैलेंज हो, वंस यू डिसाइड कि नहीं मेरे को इसके साथ भिड़ना नहीं है, इसके साथ इफ आई हैव द सोल्यूशन आई विल गो एंड यू नो डू वट एवर आई कैन, मैं करूँगी, लेकिन उसकी वजह से डर को या चिंता को अपने अंदर आने नहीं दूंगी. यू नो, जस्ट कीपिंग दैट फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम दैट. तो हर चीज़ को जो भी सिचुएशन, जो भी चैलेंज हमारे लाइफ में आता है, उसको एज इट इज़ अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. हर चीज़ के लिए जैसा आ रहा है उसको प्यार से एक्सेप्ट करना. बिकॉज हम लोग बार बार क्या समझते हैं कि एवरी थिंग इज़ एनर्जी. एनर्जी क्या है? विच इज़ नेवर बॉर्न एंड नेवर डाई, एंड इट इज़ नेवर कैन बी डिस्ट्रॉयड, एंड इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म्स. और हमारी वही भगवान की भी परमात्मा की, भगवान की, गॉड की डेफिनेशन भी वही है. हम जो परमात्मा के लिए बोलते हैं ना, सदा से था, सदा है, सदा रहेगा, कभी मरता नहीं, कभी जन्मता नहीं, वो हमेशा था, हमेशा है. तो हमारे अंदर भी जो है, हमारा जो भी हर चीज़ का जो क्रिएशन हुआ है उसी परमात्मा की, उसी एनर्जी के सोर्स से हुआ है. तो सारा का सारा जब वो उसी सोर्स से आया है तो वो जो एनर्जी यू नो हमको इस तरह से, व्हाट आई वाज यू नो थिंकिंग, वन सेक, okay, anyways, it has slipped from my mind. Now let us move forward. Releasing the miracle working powers of our mind, bringing it into your daily life. Let us make this. Yeah. So a personal healing will always be the most convincing evidence of your subconscious powers. Many years ago, I managed to cure myself of a malignancy. In medical terminology, it is called a sarcoma. Sarcoma is the word used for cancer. है ना? जानते होंगे आप लोग, right? तो ये जोसेफ मर्फी अपने बारे में बात करें तो many years ago I managed to cure myself of a malignancy. In medical terminology, it is called a sarcoma by using the healing power of my subconscious mind, which created me and still maintains and governs all my vital functions. तो उसी पावर को किस वे में, राइट वे में यूज़ करके मैंने कैसे उसको यूज़ किया कि वही पावर मेरे लिए काम करती. तो यही एनर्जी की पावर सारा टाइम हमारे लिए काम कर रही है, बट बिकॉज ऑफ आवर थॉट्स एंड पैटर्न्स हम उसको वी एंड अप यूजिंग इट मोस्टली इन अ वे विच इज़ गोइंग अगेंस्ट अस एंड विच इज़ क्रिएटिंग यू नो challenges and negative experiences for us.
So the technique I applied then is explained in detail in this book. I feel sure that it will help others to trust the same infinite healing presence lodged in the subconscious depths of all of us. Thanks to the kindly advice of an elderly doctor friend, I suddenly realized that it is natural to assume that the creative intelligence that made all my organs, fashioned my body and started my heart can heal its own handiwork. है ना? वही इंटेलिजेंस जिसने कैसे बनी थी हमारी बॉडी, फ्रॉम ए टाइनी ड्रॉप ऑफ लिक्विड, है ना, वहाँ से एक सेल मल्टीप्लाइज इंटू 2, 2 इंटू 4 एंड फिर धीरे धीरे हमारा हार्ट बना, हमारे ऑर्गन्स बने. उस इंटेलिजेंस ने अगर ये बॉडी बनाई एंड दैट बॉडी व्हेन वाज बॉर्न इट वाज दैट टाइनी अ बॉडी, फिर हमारी बर्थ के बाद भी हमको उसने कहाँ से कहाँ पे ला के रखा है. दैट इंटेलिजेंस वर्किंग ना. हमने क्या किया इसके लिए? कुछ किया है क्या? हमने आपको बताया कि मेरे बाल इस तरह से बढ़ने चाहिए, मेरे हाथ इस तरह से बढ़ने चाहिए, मेरे हाथों की ये लेंथ होनी चाहिए, मेरी फिंगर्स की ये लेंथ होनी चाहिए, मेरे बोन्स ऐसे होने चाहिए, मेरा हार्ट ऐसे काम करना चाहिए, मेरे ब्लड को ऐसे ऐसे फंक्शन करना चाहिए, या ऐसे ऐसे फ्लो करना चाहिए, ऐसा ऐसा काम करना चाहिए. कुछ भी नहीं. कौन कर रहा है ये हमारे लिए सारा टाइम? दैट इंटेलिजेंस विच इज़ स्टेइंग विद इन अस, विच इज़ वर्किंग इन साइड अस. तो अगर वो मेरे को क्रिएट कर सकती है, तो अगर ये ब्रेक डाउन आया तो उसी इंटेलिजेंस के पास पावर नहीं है क्या कि उसको हील करे? एंड पावर तो है, वी हैव सीन इट ना. हम लोग जब ये छोटा बड़ा कुछ होता है, एक थोड़ा सा सिर में दर्द आया तो मैनी अ टाइम्स वी इग्नोर इट ना, अपने आप ठीक हो जाएगा. वी हैव दैट फेथ, वहाँ पे हमारा फेथ काम करता है ना, कि ठीक हो जाएगा अपने आप. लेकिन या एक छोटा सा कट हुआ या छोटा सा चोट लग गई कहीं पे, तो हम लोगों को पता है ये हील हो जाता है अपने आप, हम दौड़ते भी नहीं डॉक्टर के पास. लेकिन अगर कहीं पे बड़ा हो जाता है, देन वी गेट स्केयर्ड एंड फियरफुल. वाई? कोई बड़ी बीमारी आ गई है क्या? उसको भी अगर हमारे अंदर में वही डीप फेथ हो तो वो अपने आप वो वहाँ पे भी हीलिंग होगी, है ना. दैट रियली डजेंट मीन कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे या ट्रीटमेंट नहीं लेंगे. ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है तो लेंगे साथ साथ, बट ये फेथ रखना, ये बिलीफ रखना, ये ट्रस्ट रखना विल उस प्रोसेस को, उस हीलिंग प्रोसेस को बहुत मैग्नीफाई कर देता है. So what he is saying, the doctor dresses the wound, but who is it that heals it? That divine intelligence, that God, उसकी पावर ही उसको हील कर रही है ना. तो ये सारी की सारी पावर है कहाँ पे? हमारे अंदर में है. वो वही पावर ऑल अराउंड जिस वो कि सारा टाइम वो क्रिएशन कर रही है. और ये क्रिएशन खाली रूप चेंजेस करता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता, कभी भी completely जाता नहीं, है ना. तो ये एनर्जी इज अवेलेबल इन ऑल फॉर्मेट्स, एवरी मोमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, एंड दैट एनर्जी, दैट इंटेलिजेंस इज वर्किंग विद इन अस ऑल्सो. सो वंडर्स हैपन व्हेन यू प्रे इफेक्टिवली. अब ये लेके आ रहे हैं कि वंडर्स हैपन व्हेन यू प्रे इफेक्टिवली. हम लोग प्रेयर करते तो हैं, कब करते हैं? जब हमारे लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे. यहाँ पे इनके कहने का मतलब है कि उस टाइम पे तो हमको प्रे करते ही हैं हम लोग, बट हम सिर्फ उसी टाइम पे क्यों करें? वाई डोंट वी मेक द प्रेयर, और ये इंटेंशनल क्रिएशन जिसको यहाँ पे इन्होंने प्रेयर का नाम दिया है, उसको हम अपना डेली का एक हमारा लाइफस्टाइल क्यों नहीं बनाते, एक रूटीन क्यों नहीं बनाते? सो लेट्स रीड व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इन दिस. Scientific prayer is the harmonious interaction of the conscious and subconscious levels of mind, scientifically directed towards a specific purpose. तो साइंटिफिक प्रेयर का क्या मतलब है? इट इज़ अ मेथोडिकल प्रेयर, है ना, कि हम लोग जिस तरह से प्रेयर कर रहे हैं वो प्रेयर राइट वे में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उसको किस तरह से मेथोडिकल वे में करना चाहिए कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हमारे लिए वो रिजल्ट्स क्रिएट करे. That is what he is going to tell us, and it is a law-based inner process. So scientific का मतलब है कि ये scientific मतलब ऐसा कुछ वो बताएगा. साइंस क्या किस चीज़ पे वो करती है, किस चीज़ को, कोई भी चीज़ को अगर इन्वेंशन का ये देती है, स्टेटस देती है कि ये एक नया इन्वेंशन हुआ है, तो क्यों देती है? क्योंकि इसको अब किसी भी सर्कमटेंस, किसी भी परिस्थिति में इसको अगर हम चेक करेंगे तो इसका रिजल्ट कंसिस्टेंट आएगा, है ना, सेम ही रिजल्ट आएगा. तो ये साइंटिफिक में यहाँ पे प्रेयर जो बता रहे हैं, या मेथोडिकल प्रेयर जो ये बता रहे हैं, इनका कहने का मतलब है साइंटिफिक वे में करने से कि अगर इस तरह से आप करोगे तो कंसिस्टेंटली यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट्स दैट यू आर डिजायरिंग
है ना। ऐसे हम प्रेयर करते हैं तो हमें अगर राइट वे नहीं पता है, या अगर हम एक तरह से कर रहे हैं जो हमारे लिए काम नहीं कर रही है, और तो क्यों नहीं काम कर रही है, उसको किस तरह से करना चाहिए कि वो कंसिस्टेंटली 100% टाइम हमको रिजल्ट दे। एंड देन इट फॉलोज क्लियर प्रिंसिपल्स, एंड देन द हार्मोनियस इंटरेक्शन। साइंटिफिक प्रेयर इज द हार्मोनियस इंटरेक्शन ऑफ द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस लेवल्स ऑफ आवर माइंड। तो कॉन्शियस माइंड क्या बोलता है, जैसे कि हार्मनी, अभी तक क्या है हमारे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में, क्या है, डिसहार्मनी है। कैसे डिसहार्मनी है? कॉन्शियस माइंड तो क्या बोलता है, मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करता है क्या कि उसको कि मैं सक्सेस पाने का के लायक हूँ, है ना, सक्सेस चाहिए। मैंने बहुत लोगों को सुन लिया कि अरे अपने थॉट क्रिएट करो, और जैसे ही आप थॉट क्रिएट करोगे तो अब सक्सेस आनी शुरू हो जाएगी। आपने माइंड से तो थॉट क्रिएट कर लिया, बट मेरा हार्ट, मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मेरा बिलीव ही नहीं कर रहा है। उसके अंदर में आता है अच्छा सिर्फ ऐसे बोल देने से हो जाता है क्या, चलो मैं भी बोल के देखता हूँ, बट अंदर में वो दुख 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 चल रहा है। नो 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 नो, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, आई एम नॉट एबल टू फील दैट। तो जब तक मैं फील नहीं करूंगा तो वो डिसहार्मनी है, तो उसमें कॉन्शियस में एंड सबकॉन्शियस के बीच में डिसहार्मनी है। तो ये जो प्रेयर हमको सिखाएंगे उसके लिए हमें ये बता रहे हैं कि उसमें कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस के बीच में एक हार्मोनियस आएगा, ये कनेक्शन आएगा, तब जाके ये साइंटिफिक वे में जो ये प्रेयर की जा रही है इज देन व्हेन scientific prayer is the harmonious interaction of the conscious and subconscious levels of mind scientifically directed towards a specific purpose. Scientifically scientifically directed towards a specific purpose. अब यहाँ पे specific purpose is also a word to be stressed upon. एक कुछ चीज़ चाहिए कि हम वट एवर वी वॉन्ट, आर वी श्योर हमको यही चाहिए। कई बार क्या होता है, हम इधर उधर का देख के सुन के बहुत कुछ चाह लेते हैं, मांग लेते हैं, हमारी वो अंदर की डिज़ायर नहीं होती है। कई बार सक्सेस चाहिए, या कुछ या मोनेटरी गेन्स चाहिए, या ऐसा कुछ चाहिए, अबंडेंस चाहिए, क्योंकि हमने दूसरों को देखा है तो आई थॉट कि चलो हम भी क्रिएट करते हैं, बट दैट इज़ नॉट माई इनर डिज़ायर। तो कई बार हम बहुत स्पेसिफिकली हम उसको डिसाइड नहीं कर पाते कि मेरी लाइफ में मुझे चाहिए क्या। तो हम काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश तो करते हैं, बट मैनिफेस्ट कर नहीं पाते बिकॉज वो स्पेसिफिक नहीं है, हमारा अंदर में डिसीजन नहीं है, वो क्लैरिटी नहीं है कि हमको यही कुछ चाहिए। तो वो साइंटिफिकली डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक पर्पस, मतलब हमारा जो थॉट है वो काफ़ी वेग है। जैसे हमको चाहिए क्या, आई जस्ट वॉन्ट टू बी हैप्पी। अब हैप्पी आप किस चीज़ में हैप्पी हो जाओगे? अगर इफ़ यू आर आस्किंग यूनिवर्स कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए, तो हैप्पीनेस अब आपको वो बोलेगा यूनिवर्स को तो एक क्लियर मैसेज देना पड़ेगा, एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, या अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा कि मुझे क्या ऐसा चीज़ है जिसके थ्रू मुझे ये हैप्पीनेस चाहिए, ये मैं करूं और उसका जो जॉय चाहिए, तो इसके लिए मुझे ये वाला चीज़ चाहिए, ये वाला चीज़ पाके मुझे हैप्पीनेस मिलेगा। आई एम सीइंग, अगर मेरे को हैप्पीनेस चाहिए कि मेरी हेल्थ के थ्रू मुझे हैप्पीनेस चाहिए, कि मैं आज मुझे चाहिए तो कि मैं अपना अच्छे तरह मेरी बॉडी में पूरा एनर्जी का लेवल परफेक्ट हो जाए, लेकिन मैं मांग रही हूँ हैप्पीनेस, तो यूनिवर्स को शायद हैप्पीनेस समझ में आया कि चलो इसको किसी बार में बैठा देते, यहाँ पे इसको शायद हैप्पीनेस मिलेगा। सो इज दैट द काइंड ऑफ हैप्पीनेस आई वॉज लुकिंग फॉर? नो, आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक हैप्पीनेस इन माई हेल्थ, इन माई बॉडी, कि मेरी एनर्जी लेवल्स इतने अच्छे हो जाए कि मेरे को वो हैप्पीनेस और वो जॉय फील हो। सो दैट क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वॉट एग्जैक्टली डू यू वॉन्ट, एंड उसके लिए फिर इमोशनल कन्विक्शन बहुत ज़रूरी है कि दैट आई हैव टू फील इट, कि मुझे वो फील होना चाहिए, वो फीलिंग आएगी तब जाके वो चीज़ हमारे अंदर हमको उसका एक्सपीरियंस हम कर सकते हैं। सो दिस बुक विल टीच यू द साइंटिफिक वे टू टैप द रियल्म ऑफ इनफाइनाइट पावर विद इन यू, इनेबलिंग यू टू गेट वॉट यू रियली वॉन्ट इन लाइफ। यू डिज़ायर अ हैप्पियर, फुलर एंड रिचर लाइफ। बिगिन टू यूज़ दिस मिरेकल वर्किंग पावर, जो मिरेकल वर्किंग पावर जिसमें मैं बताया कि इतनी हमारे अंदर में वो जो डिवाइन इंटेलिजेंस की पावर है, जो इतना कुछ क्रिएट करने की पावर रखती है, उसको टैप इन करके हम एंड देन स्मूथ योर वे इन डेली अफेयर्स, सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड ब्रिंग हार्मनी इन फैमिली रिलेशनशिप्स। तो जितने भी हमारी लाइफ के जो चैलेंजिंग एरियाज हैं, उन सब में हमको रिजल्ट हमको इसके थ्रू मिल सकता है, अगर हम ये मिरेकल वर्किंग वाली पावर को हम यूज़ करना सीख जाएंगे तो। सो बी श्योर दैट यू रीड दिस बुक सेवरल टाइम्स।
The many chapters will show you how this wonderful power works and how you can draw out the hidden inspiration and wisdom that is within you. अब इसके जो हम आगे आगे हमको सिखाएंगे, ये लोग बताएंगे, ये जोसेफ मर्फी, he tells us कि there are hidden inspirations and wisdom that is within you. So how you can draw this out, this hidden inspiration, क्या बोला, how this wonderful power works. So this subconscious mind is connected to our finite intelligence. तो ये जो हमारी wonderful power है, how it works, ये हमारे divine intelligence के साथ since it is connected, so it works through a simple but profound law कि जो भी हम इसके अंदर में डालेंगे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हम जो भी डालेंगे, वॉट एवर यू इम्प्रेस विथ फीलिंग्स एंड बिलीव्स, द सबकॉन्शियस विल एक्सप्रेस एज रियलिटी, बिहेवियर, इंट्यूशन एंड रिजल्ट्स. सो इट इज नॉट जजमेंटल, इट कैन नॉट जज एनीथिंग एंड क्रिटिसाइज और एनालाइज एनीथिंग. इट जस्ट डज वॉट इट इज एबल टू डू. अपने आप जो कर पाएगा वो ऑटोमेटिकली इससे होता है, बिकॉज हम इसके अंदर जो भी मैंने थॉट हमारे अंदर में जो था और उसको अगर मैंने डीपली एक्सपीरियंस कर लिया, फील कर लिया, अगर मैंने उसको डीपली फील किया है, देन इट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड. एंड जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में वो जाता है, देन इट सबकॉन्शियस विल एक्सप्रेस इज एज रियलिटी, बिहेवियर या हमारा रिजल्ट्स इन आवर लाइफ. सो हाउ यू कैन ड्रॉ आउट द हिडन इंस्पिरेशन एंड द विजडम विद इन यू. यू आर नॉट गेटिंग विजडम फ्रॉम आउटसाइड. हमारे अंदर जो हमको ये विजडम हमारे अंदर है, इनहेरेंट विजडम है. एज आई सेड ना कि हम जब इतना वी आर बॉक डाउन बाय दोज कंसिस्टेंट थॉट्स एंड वरीज एंड चैलेंजेस, एंड जब हमारी सिचुएशन लाइफ में ऐसे भी हम बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं भी हो, बड़े चैलेंजेस तो जब आते हैं तब तो हम लोग वी आर टोटली डाउन इन द डम्प्स. बट ऐसे भी मॉर्निंग से रात तक वी आर कॉट अप इन टू constant activities, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है. We are not relaxing, we are not sitting in silence and not connecting with ourselves. चुप करके शांति से अगर हम नहीं बैठ रहे हैं तो वो इंट्यूटिव पावर्स जो हमारी है, वो जो इंट्यूशंस हमको आने चाहिए, वो गाइडेंस, इंट्यूटिव गाइडेंस जो हमें मिलनी चाहिए, उसको हमको टैप इन कर पाना चाहिए, उसको पकड़ लेना चाहिए. वी आर नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली इन टू डूइंग समथिंग और द अदर. अगर कुछ नहीं भी कर रहे तो वी कॉन्स्टेंटली ऑन द फोन, है ना, तो इवन दैट इज टेकिंग अप आवर अटेंशन. तो हम शांति से चुप करके कहाँ बैठ पाते हैं क्या? नहीं बैठ पाते ना. मोस्टली वी आर कॉट अप इन सम और द अदर एक्टिविटीज. कुछ ना कुछ टेक्स अप आवर अटेंशन. तो हियर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डोंट गेट दैट विजडम. दैट विजडम इज ऑलवेज विद इन अस. हमारे अंदर ही है वो विजडम, हमको बाहर से उसको लेने की जरूरत नहीं है. यू आर अनकवरिंग वॉट इज ऑलरेडी विद इन अस जस्ट बाय टैपिंग इन टू दैट इंटेलिजेंस एंड कनेक्टिंग विद दैट डिवाइन इंटेलिजेंस, चाहे वो इंस्पिरेशन के रूप में आए या विजडम के रूप में आए. नाउ लर्न द सिंपल टेक्निक्स ऑफ इम्प्रेसिंग द सबकॉन्शियस माइंड. फॉलो द न्यू साइंटिफिक वे इन टैपिंग द इनफाइनाइट स्टोर हाउस. अब इनफाइनाइट स्टोर हाउस ऑफ दैट गाइडेंस, है ना. तो अपने आप के साथ जैसे साइलेंस में बैठना, चुप करके बैठना, एज आई सेड वो अपने लिए वो टाइम निकालना, बैठना अपने साथ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, आर वी एबल टू कनेक्ट विद द थिंग कि मेडिटेशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है. एक बड़ा मेडिटेशन तो हम लोग जो मॉर्निंग में करें या रात को करें या जब भी दिन में एक बार करते हैं, वेन एवर वी हैव दैट सूटेबल टाइम. लेकिन इन बिटवीन ऑल्सो मे बी 1 घंटे 2 घंटे के बाद इफ वी टेक आउट अ फ्यू मिनट्स, जस्ट
Leave aside everything, keep the phone aside, everything, just close your eyes and just sit in silence and listen to the maybe sounds around you, listen to the sounds and movements and connect with the vibrations happening inside your body. ये सब जब हम करेंगे then वो माइंड साइलेंस होने लगता है, हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होने लगता है. एंड एज आई सेड, द नर्वस सिस्टम जैसे रिलैक्स होगा, हमारी बॉडी जैसे रिलैक्स होगी, वी स्टार्ट गेटिंग इनटू एंड टैपिंग इनटू दैट डिवाइन इंटेलिजेंस. हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके साथ कनेक्ट कर पाता है एंड देन वी गेट दोज इंट्यूटिव विजडम एंड गाइडेंस. So follow the new scientific way in tapping the infinite storehouse. अब infinite storehouse क्यों बोला कि ये हमारा infinite storehouse, like infinite ideas can be are there actually, हमारे अंदर हैं वो, बट हम नहीं उनको कनेक्ट कर पाते. जैसे अगर हम जितना, जैसे अब कितने लोगों का एक्सपीरियंसेस हम लोग सुनते हैं कि मेडिटेशन करते करते कितना लाइफ में सक्सेस आ गया. क्यों? दे स्टार्ट गेटिंग दोज आइडियाज, दे स्टार्ट गेटिंग वो चैनल्स उन लोगों के लिए खुलने लगते हैं बिकॉज उनका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो गया, बिकॉज उनका बॉडी हैज स्टार्टेड रिलैक्सिंग एंड दे हैव स्टार्टेड गेटिंग इनटू साइलेंस. ये सारा का सारा गेम, व्हाट आई एम रियलाइजिंग, इट्स ऑल अबाउट योर ब्रेन वेव्स एंड योर नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में आपने उसको रिलैक्स रखना सीख लिया. दिस इज वाई आई एम डूइंग साउंड हीलिंग ऑल्सो दीज डेज. साउंड हीलिंग का भी मैंने साउंड का भी देखा है, बहुत इम्पैक्ट आता है डिफरेंट साउंड्स का, फ्रीक्वेंसीज का, या हम लोग सिंगिंग बोल्स यूज़ करते हैं तो उनका, जैसे मैंने एक सेशन किया था. सो यू ऑल एक्सपीरियंस ना, आप ही लोगों में से कितने लोगों ने अटेंड किया था, यू ऑल सेड ना कि बहुत रिलैक्सिंग लगा. वो रिलैक्स लगा मीन्स हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो गया उस टाइम पे. मेरे ये जो एजिटेशन, इरिटेशन मेरी बॉडी में आता है वो मुझे रिलैक्स कर देता है, मेरे को एक बीटा से अल्फा स्टेट में लेके आता मेरी ब्रेन वेव्स को. जैसे जैसे मैं उस ब्रेन वेव में आती हूँ, नीचे थीटा में चली जाती हूँ, मेरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, मेरी माइंड रिलैक्स हो जाती है. जैसे जैसे मैं रिलैक्स हो गई, मेरा बीइंग क्या हो गया, अभी रिलैक्स्ड ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग से आई एम अट्रैक्टिंग रिलैक्स स्टेट ऑफ अफेयर्स इन माई लाइफ, एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ, ऑटोमेटिकली होने लगता है. सो मेरा काम सारा का सारा ये है कि अपने आप को शांति में लेके आना, प्यार में लेके आना, कामनेस में लेके आना, पीस में लेके आना. सो फॉलो द न्यू साइंटिफिक वे इन टैपिंग द इनफाइनाइट स्टोर हाउस ऑफ आइडियाज. स्टोर हाउस की इनफाइनाइट आइडियाज हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, हजारों लाखों सॉल्यूशंस एक ही चीज के लिए आपको मिल सकते हैं, एंड बस खाली आपको अपने अंदर के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है. क्रिएटिविटी के आइडियाज, सॉल्यूशन या हीलिंग इंटेलिजेंस, सारा का सारा इज एवरीथिंग विद इन अस. वी जस्ट नीड टू कनेक्ट विद दैट. वी कैन ऑल्सो कॉल इट यूनिवर्सल इंटेलिजेंस या हायर माइंड या डिवाइन कॉन्शियसनेस, जो कि सारा टाइम इज अवेलेबल टू गाइड अस, टू हेल्प अस, टू सपोर्ट अस. So read this book carefully, earnestly and lovingly and prove to yourself the amazing way it can help you. It may be, and I believe it will be, the turning point of your life. ठीक है? So everybody prays. But how do you tap into it? कैसे बोला इसके अंदर टैप कैसे करना है? वही हमने बताया, रिलैक्सेशन करना. फर्स्ट अ टेंस माइंड, अगर मेरा माइंड टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तो वो इंट्यूशन को ग्रैब नहीं कर पाएगा. जो मेरे पास इंट्यूटिव साइलेंस एंड गाइडेंस एंड सोल्यूशंस आने वाले हैं उनको नहीं, वो पकड़ भी नहीं पाएगा. अगर मेरे आसपास भी सब कुछ होगा, जैसे प्रियंका वाज सेइंग ना कि उस दिन मैं ब्रेथ वर्क कर रही थी, यू शेयर्ड ना दैट डे कि आज ब्रेथ वर्क में मुझे सडनली ऐसा कुछ आया कि उस इंसान का नाम आ गया कि वाई डोंट आई गो एंड अप्रोच हिम फॉर सर्टेन वर्क, वट एवर इट वॉज. वही इंसान आपकी लाइफ में कब से है बट आपको आता ही नहीं है आइडिया. बट नाउ यू सिटिंग इन द साइलेंस, आप मेडिटेशन करते हो, ब्रेथ वर्क करते हो, आपको अंदर से कुछ एक नज आता है, गो मीट दैट पर्सन, आपको वहां से सोल्यूशन मिलेगा. एंड यू सडनली से वाओ, ये पहले क्यों नहीं सोचा था. क्यों नहीं सोचा था? बिकॉज आप स्ट्रेसफुल माइंड में थे, आप रिसेप्टिव ही नहीं थे, आप रिसेप्टिव मोड में थे ही नहीं. जैसे ही आप साइलेंस में जाते हो, मेडिटेशंस करते हो, शांत होते हो, अपने आप को एक्सेप्टेंस में लेके आते हो, यू आर नाउ दैट रिसेप्टिवनेस का पात्र बन गए आप उस पात्र में अब ये सब कुछ आएगा. ऑल दोज सॉल्यूशंस एंड आइडियाज विल स्टार्ट अपीयरिंग. सो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसा ऐसा कि बीच बीच में अपने आप को हम लोग बैठ के अपने आप को साइलेंस की एक्टिविटीज़ में लेके जा सकते हैं. बीच बीच में छोटे छोटे मेडिटेशंस कर सकते हैं, या
यू नो जस्ट लाई डाउन मे बी फॉर यू नो 1-2 घंटे में, जब भी टाइम मिले थोड़ी देर just lie down and relax your body and calm your body and bring your attention to your breath, to your heart, and you know, we can repeat, infinite intelligence is within me, which is working within me, which is present within me, knows the answer. अब कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है, सपोजिंग अगर ऐसा कोई चैलेंज है एट द मोमेंट प्रेजेंट में भी, अगर कोई ऐसा चैलेंज है हमारे सामने, तो हम उस टाइम पे ये कर सकते हैं ना कि छोड़ दो यार, मेरे हाथ में नहीं है, मैं अपना तो कोशिश करके देख लिया मैंने, इट्स नॉट हैपनिंग, सो लेट मी जस्ट लाई डाउन एंड रिलैक्स माई सेल्फ एंड कनेक्ट विद दैट इंटेलिजेंस पावर, डिवाइन गाइड इंटेलिजेंस विद इन मी, कि दैट डिवाइन इंटेलिजेंस, दैट इनफाइनाइट इंटेलिजेंस which is present within me, it knows the answer. It is going to guide me. I am open, I am available, I am aligned, I am aligning myself and I am making myself to be receptive. I am allowing myself and opening myself to receive whatever guidance it wants to guide me with. And just अपने आप को छोड़ दो and relax हो जाओ, ये अब जो होगा देख लेंगे. And you ट्रस्ट मी, कितनी जल्दी से आपको सॉल्यूशन आपके अंदर से मिलेगा या बाहर से कुछ दिख जाएगा आपको. ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस, सो दे आर सो इम्पॉर्टेंट. इट इज़ गाइडिंग मी नाउ एंड आई ट्रस्ट दैट पावर, दैट इंटेलिजेंस, दैट डिवाइन इंटेलिजेंस, दैट डिवाइन गाइडेंस विच इज़ प्रेजेंट विद इन मी. आई ट्रस्ट इट, फील इट, एंड देन रात को सोने से पहले वो करो या दिन में कभी भी आपको लगे कि अभी भी बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, अभी भी एकदम ब्रेक डाउन हो जाने का मूड आ जा रहा है, एकदम टूट जाने का मन कर रहा है, रो देने का मन कर रहा है, ओके रो लो थोड़ी देर, परेशान होना है परेशान हो लो, लेट इट आउट, इसको निकल जाने दो अपनी बॉडी से, एंड देन रिलैक्स. अभी बोलो कि आई एम कनेक्टिंग विद दैट डिवाइन पावर विद इन मी, आई विल अलाउ दैट पावर यू नो टू शो मी द पाथ, गाइड मी, व्हाट शुड आई बी डूइंग, और आई डोंट वांट टू even say anything. I'm just surrendering myself. Whatever you want me to do, you will show me the path and that will be my next move, and you will guide me to take whatever step you want me to take. है ना? So do you know how to pray effectively? How long is it since you prayed as part of your everyday activities? है ना? Everyday activities में हम लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते ना. We do. हम लोग प्रेयर्स करते हैं तब जब हमारे सामने में कोई प्रॉब्लम्स आते, कोई चैलेंज आते, तब भगवान के पास दौड़ो, मंदिर दौड़ो और भगवान को याद करो कि अब ये हमारा, मैं क्या करूं, मेरे सामने ये इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया, ये चैलेंज आ गया. सो हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू प्रेड एज पार्ट ऑफ योर एवरीडे एक्टिविटीज. इससे पहले क्या बोला था, साइंटिफिक प्रेयर इज द हार्मोनियस इंटरेक्शन ऑफ द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड. तो साइंटिफिक प्रेयर अगर करनी है तो इट हैज़ टू बी अ मेथोडिकल प्रेयर एंड इट हैज़ टू बी अ डेली रूटीन प्रेयर. तो मुझे इसको डेली रूटीन में भी करना होगा, सो दैट इट बिकम्स आवर हैबिचुअल माइंड. हमारा हैबिचुअल माइंड क्या है, टेंशन में, स्ट्रेस में, गुस्से में, इरिटेशन में चले जाना वाला. लेकिन अगर हम डेली अगर वो प्रैक्टिस करेंगे उस प्रेयर को करने की, या अपने आप को उस डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट करने की, उसके साथ सरेंडर कर देने की, उसके अपने आप को एक्सेप्टेंस में लेके आने की, अगर मैं डेली करूँगी तो मेरा हैबिचुअल माइंड विच इज़ सबकॉन्शियस माइंड, मेरा वो सबकॉन्शियस माइंड में ये पैटर्न्स चले जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली कोई चैलेंज आएगा, सरेंडर, मेरा फर्स्ट थॉट क्या निकलेगा, सरेंडर एंड बी इन एक्सेप्टेंस. मुझे कुछ नहीं सोचना, आई नो दैट डिवाइन इज देयर, वो अपने आप सोल्यूशन निकालेगा. आएगा ना ये थॉट. विद कंसिस्टेंट प्रैक्टिस हम लोगों ने जब ये किया, जब हम लोग 40 डेज वाली साधना कर रहे थे, तो कितना हम लोगों की ये वाली हैबिट्स बन गई थी ना, काफ़ी लोगों की हमारी ये बनी थी ये वाली हैबिट, राइट, हुआ था ना. तो काफ़ी लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया. तो जितना बियॉन्ड 40 डेज भी अगर हम लोगों ने उसको कंटिन्यू किया है, तो ये स्लोली दिस बिकम्स पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी, एंड वंस इट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी, इट बिकम्स आवर डेली एक्सपीरियंस. फिर वो वैसे ही एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में लेके आएगी. सो इन एन एमरजेंसी, इन टाइम ऑफ डेंजर और ट्रबल, इन इलनेस एंड व्हेन डेथ लर्क्स, प्रेयर्स पोर फोर्थ. तो चैलेंजेस के टाइम में तो प्रेयर ऑटोमेटिकली निकलती है, बट क्या हम डेली उसको करते हैं? Just follow the daily news. There are reports that people all over the country are praying for a child stricken with a so-called incurable ailment, for peace among nations, for a group of miners trapped in a flooded mine,
तो ये अगर हम लोग न्यूज़ में देखते हैं तो इस तरह की न्यूज़ बहुत आती है कि लोग, कितने सारे लोगों ने प्रेयर चेन, आजकल कितने व्हाट्सएप में भी मैसेज आ रहे हैं ना कि चेन ऑफ प्रेयर्स बनाओ, रात के 9 बजे सब लोग बंद करके अपना उस टाइम पे वो करेंगे तो एक मैग्नीट्यूड ऑफ पावर ऑफ इतनी ग्रुप एनर्जी की प्रेयर्स की पावर से बहुत कुछ होता है, वो होगा। तो ये चैलेंज का टाइम है तब हम कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे तो सब ये प्रेयर्स ऑटोमेटिकली होती है। एंड लेटर वी हियर दैट व्हेन रेस्क्यूड द माइनस से दे प्रेड वाइल वेटिंग फॉर रेस्क्यू। तो वो जो माइनस जिनके लिए बाहर से प्रेयर्स हो रही थी या उनका रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था, वो लोग जब अंदर में फंसे हुए थे, व्हाट वर दे डूइंग? दे वर प्रेइंग एंड देयर प्रेयर्स वर वर्किंग इनटू द सॉल्यूशंस बीइंग created for them when in the form of this rescue which was going to come to rescue them, है ना। तो इनकी प्रेयर्स यहाँ पे इस तरह से काम कर रही थी। तो उसी तरह से इस प्रेयर को हम डेली अपने लाइफ में यूटिलाइज करके अपने लिए काम में लगा सकते हैं। Certainly prayer is an ever present help in times of trouble, but why should you wait for trouble to make prayer an integral and constructive part of your life? The dramatic answer to prayer make headlines and are the subject of testimonies to the effectiveness of prayer. The dramatic answer to prayer make headlines, है ना। तो ऐसे जब बहुत बड़ी बड़ी ऐसे कोई चैलेंजेस होते हैं तब तो कितना न्यूज़ में भी आ जाता है कि ऐसे ऐसे इतना बड़ा ये हुआ वो हुआ, इतना प्रॉब्लम आया। कितना साल पहले था ना, एक छोटा सा बच्चा एक बहुत बड़े एक गड्ढे में कहीं नीचे, कितने 100 मीटर्स नीचे जाके किसी उसमें ट्रेंच में फंस गया था, कितने दिन के बाद वहां से उसको निकाला था। ऐसे तो कितने हम लोग सुनते हैं। तो व्हेन दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग, सो मेनी पीपल प्रे फॉर देम, कितनी सारी प्रेयर्स होती हैं और कितने सारे एफर्ट होते हैं उन बच्चों को निकालने के लिए, और इसका कितना बड़ा न्यूज़ बन जाता है ना, इतनी बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन अगर आए। लेकिन क्या बोल रहे हैं, लेकिन व्हाट ऑफ द मैनी हम्बल प्रेयर्स ऑफ चिल्ड्रन। जब छोटे छोटे बच्चे अगर वो डेली प्रेयर करते हैं, या हम खाने के टाइम पे बैठ के 2 मिनट उस परमात्मा को याद करते हैं, सिंपल थैंक्स गिविंग ऑफ ग्रेस एट टेबल डेली वाइल ईटिंग आवर मील्स एंड द फेथफुल डिवोशंस वेयर इन द इंडिविजुअल सीक्स ओनली कम्यूनियन विद गॉड। तो ये छोटे छोटे जब मौके जब हम प्रेयर्स करते हैं तो इन प्रेयर्स का क्या इम्पैक्ट नहीं होता, उनका भी उतना ही इम्पैक्ट है। हमको प्रेयर्स खाली उस टाइम का प्रेयर्स करने का वेट खाली नहीं करना है, जब कोई बड़ा मौका आएगा तभी हम प्रेयर करेंगे। ये छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे मौके हैं जब हमको बार बार उनको प्रेयर्स करनी चाहिए, और इन प्रेयर्स का भी उतना ही बड़ा इम्पैक्ट है ना। सो माई वर्क विद पीपल हैज़ लेड मी टू स्टडी द वेरियस अप्रोचेस टू प्रेयर. I have experienced the power of prayer in my life, and I have talked and worked with many others who have benefited greatly from the help of prayer. The problem usually is how to tell someone else how to pray. तो जो लोग बहुत इन सब चीज़ों में हैं उनके साथ तो बोलते कि मैंने बहुत काम किया और वो लोगों को ये बात समझ में आती भी है हाउ प्रेयर्स वर्क, लेकिन ऐसे दूसरे लोग जो इन बातों में नहीं हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा नहीं है, जो जिनके अंदर में ये बातों का फेथ नहीं है, उन लोगों को कैसे समझाएं कि इन बातों का कितना असर होता है। People who are in trouble have difficulty in thinking and acting reasonably, है ना। अब किसी के लाइफ में बहुत चैलेंज आ गया, we as spiritual practitioners and seekers, जो हम लोग रेगुलर इनमें होते हैं, अगर हम किसी को देखते हैं ऐसे किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है ना, तुरंत हमारा क्या हार्ट करता है कि मैं कैसे तो इसको हेल्प कर दूँ, इसके अंदर में वो फीलिंग ऑफ कामनेस और पीस आ जाए, लाइटनेस फील करे, वो हल्कापन फील करे, इस दुख से बाहर निकल आए। लेकिन अभी इस टाइम मैं अगर इसको समझाने बैठूंगी तो मैं क्या समझाऊं इसको जो इसको तुरंत इम्पैक्ट कर जाए। हो सकता है क्या ऐसा कि ये लास्ट मोमेंट में उसको आप समझा दो और वो समझ जाए? नहीं समझ पाएगा। कितनी बड़ी प्रिपरेशन, हम लोग सालों से इस प्रिपरेशन को करते हैं, अब जाके हम लोगों को ग्लिम्पसेस ऑफ पीस एंड काम दिखते हैं इन द जब ऐसी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है हम लोग अपने आप को उससे विदड्रॉ कर पाते हैं। हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई नया जिसने कभी भी कुछ ऐसा किया नहीं, अभी मैं जाऊँ, वो बहुत प्रॉब्लम में है, रो रहा है, इतना स्ट्रेस में है, चिंता में, और मैं तो मेरा हार्ट गोज लाइक दिस कि मैं कैसे तो जाऊँ, इनको क्या बता दूँ ऐसा कि ये थोड़ा रिलैक्स हो जाए, बट नहीं कर सकते, है ना। पीपल हु आर इन ट्रबल हैव डिफिकल्टी इन थिंकिंग एंड एक्टिंग रीजनेबली, वो समझ ही नहीं पाएगा। देयर प्रॉब्लम्स ओवरवेलम देम एंड ब्लॉक देयर एबिलिटी टू लिसन एंड अंडरस्टैंड। वो इतने ओवरवेलम्ड हो जाते हैं कि ना वो किसी की बात सुन पाएंगे ना समझ पाएंगे, बोलेंगे मेरे को इसमें से निकालो, तुम ये क्या बोल रहा है, होपनोपोनो कर लो, ये तुम ये क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे ये करो, ये करो, ये करो, ठीक हो जाएगा, तुम क्या बोलता है मेडिटेशन में बैठो, ठीक हो जाएगा।
मानेगा कोई बात? समझ ही नहीं पाएगा, उसको डेप्थ ही नहीं है उस बात की। उसके लिए ये ना बोलते हैं ना कि कुआं जब प्यास लगेगी तब आप कुआं थोड़ी ना खोदने जाते हो, क्योंकि कुआं खोद के उस लेवल तक की डेप्थ तक जाओगे कि जब पहले वो पानी आएगा, उसको खुदाई करने में कितने दिन कितने महीनों लगते हैं, और पहले पानी निकलता है तो वो गंदा निकलता है, वो गंदे पानी को आप निकालते हो, बाहर करते हो, फेंकते हो, तब जाके वो फ्रेश पानी का आपको सोर्स मिलता है। तो कितने मंथ्स का मेहनत है तब जाके वो कुएं का फ्रेश पानी आपको मिलता है। मुझे लगता है आज प्यास लगी, मैं अभी जाऊंगा कुआं खोदूंगा और पानी पी लूंगा, ऐसे होगा क्या? नहीं होता है। दिस इज टू बी डन कंसिस्टेंटली एंड रेगुलरली, राइट? फॉर मंथ्स एंड ईयर्स की प्रैक्टिस होती है तब जाके ये काम कुछ हो पाता है, राइट? सो दे नीड एन ईजी फॉर्मूला। अच्छा, ऐसे लोग, अब इन लोगों के लिए भी इन्होंने फॉर्मूला बता दिया कि ऐसे लोग जो इतनी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, चैलेंजेस में हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ फॉर्मूलाज हम लोग कर सकते हैं, दे सकते हैं, जिससे कि वो लोग भी अपने चैलेंजेस से बाहर निकल आए। दे नीड एन ईजी फॉर्मूला टू फॉलो एन ऑब्वियसली वर्केबल पैटर्न दैट इज सिंपल एंड स्पेसिफिक। ओके, सो यूनिक फीचर ऑफ दिस बुक, क्या बोल रहा है इस फीचर बुक का, क्या फीचर है? The unique feature of this book is its down to earth practicality. Here you will find simple usable techniques and formulas that you can easily apply in your everyday life. I have taught these simple processes to men and women all over the world. The special features of this book will appeal to you because they explain why you often get the opposite of what you prayed for. है ना? तो इसमें जो भी ये है आपके फॉर्मूलाज हैं, फीचर्स हैं, दे विल अपील टू यू बिकॉज दे विल एक्सप्लेन टू यू ऑफन यू गेट द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू प्रेड फॉर। हमने मांगा तो कुछ और था लेकिन हमें मिल कुछ और गया। क्यों ऐसे मिल गया? क्योंकि आप माइंड से तो एक बात सोच रहे हो लेकिन फीलिंग आपके अंदर की कुछ और बोल रही है। क्यों? जब तक वो माइंड एंड हार्ट में, माइंड इज द वन विच क्रिएट्स द थॉट एंड फीलिंग इज द वन विच attracts that solution, या which draws that solution, which finds that solution in your life, या उसका इसको माइंड एंड हार्ट का या माइंड कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड का जब तक कनेक्शन नहीं होगा तब तक वो आपको रिजल्ट वैसा नहीं मिलता। तो उल्टा क्यों मिलता है उसको समझाने के लिए, तो thousands of times people in all parts of would have asked me, why is it that I have prayed and got no answer? In this book you will find the reasons for this common complaint. The explanation of the many ways of impressing the subconscious mind and getting the right answers makes this an ordinarily valuable book and an ever-present help in times of trouble. सो इम्प्रेसिंग द सबकॉन्शियस माइंड क्या बोल रहा है? द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैनी वेज। यहाँ पे इसी बुक में वो कई तरह से बताएंगे कि हाउ डू वी, हम लोगों ने पढ़ा ना उस दिन फर्स्ट डे में पढ़ा कि वॉट एवर यू वी इम्प्रेस ऑन अ सबकॉन्शियस माइंड बाय द वे ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स, वही एक्सप्रेस होता है हमारे लाइफ में। तो ऐसे कौन से तरीके से, मैनी वेज ऑफ इम्प्रेसिंग आवर सबकॉन्शियस माइंड, तो कितने तरीकों से उस ऐसे इम्प्रेशंस को हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे सकते हैं बाय वे ऑफ फीलिंग। व्हेन वी impress the subconscious correctly, it not only creates results, it also gives you the right answers. What does impressing the subconscious mind really mean? It means planting an idea with feelings so deeply that the subconscious accept it as truth. The subconscious does not think, it does not question, and it only accepts and expresses. तो हम जो भी फील करेंगे उसको फीलिंग करने के क्या तरीके हैं, वो फीलिंग पे कैसे हमको लेके आए, क्योंकि जब तक हम फील नहीं करते हैं तब वो उसको डीपली इम्प्रेस नहीं कर पाते सबकॉन्शियस माइंड पे, और जब तक वो डीपली इम्प्रेस नहीं होगा बाय द वे ऑफ फीलिंग तब तक वो हमारे लिए हमारी रियलिटी नहीं बन सकता। तो ऑल दोज वेज हमको इसमें जोसेफ मर्फी हमको बताने वाले हैं। तो कैसे ये इम्प्रेशंस हमारे होंगे, बाय वे ऑफ रेपिटेशंस हो गया, या इमोशंस क्रिएट करके कि फीलिंग्स क्रिएट करना है, तो उस तरह से, राइट? सो व्हाट डू यू बिलीव, एक थोड़ा सा और कर लेना, आई थिंक वी शुड फिनिश ऑफ दिस चैप्टर एटलीस्ट फर्स्ट वन आज। Contrary to what many people think, it is not the thing that is believed in that brings an answer to a person's prayer,
Prayers are answered when the individual's subconscious mind responds to the mental picture or thought in his or her mind. So, contrary to many people think, it is not the thing that is believed in. किस में विश्वास है, आप किस चीज़ में विश्वास है, मतलब भगवान में विश्वास है, किसी मंदिर में विश्वास है, किसी मस्जिद में विश्वास है, किसी ऐसी पूजा की जगह पे विश्वास है, किसी ऐसे डेटी में विश्वास है, किसी देवी देवता में विश्वास है, किसी संत में विश्वास है, उनमें विश्वास आपका आपके लिए रिजल्ट क्रिएट करता है कि ये विश्वास, दैट फीलिंग ऑफ फेथ, दिस फीलिंग ऑफ फेथ एंड बिलीफ दैट यू हैव, दैट क्रिएट्स द रिजल्ट्स, नॉट दैट पर्सन. वो इंसान आपके लिए नहीं रिजल्ट क्रिएट कर रहा है, वो डेटी, वो देवता आपके लिए रिजल्ट नहीं क्रिएट कर रहा है. उसके अंदर आपका जो ये विश्वास है, ये फेथ है, ये बिलीफ है, ये क्रिएट करता है आपके लिए रिजल्ट. सो दिस लॉ ऑफ बिलीफ is the secret operating principle in all the religions of the world. It is the hidden reason for their psychological truth. So this is law of belief. क्या हो गया? लॉ ऑफ बिलीफ हमने पढ़ा था ना कि हमारे लॉ ऑफ बिलीफ एंड फेथ इज कि जिस चीज में हम विश्वास करते हैं वो चीज हमारे लिए रियलिटी में बदल जाती है. दैट वी रेड ऑन द फर्स्ट डे. व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड लाइफ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ माइंड. सो इन ऑल रिलीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ये वाली बात मानी जाती है कि व्हाट इज दैट चाहे वो अब ये वाले जैसे ये बताया इन्होंने, दिस लॉ ऑफ बिलीफ इज द सीक्रेट ऑपरेटिंग प्रिंसिपल इन ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. What is the law of belief? That is, it is the belief that produces the result, and when this belief is accepted, कोई भी ऐसा belief अगर हमारे अंदर में वो faith है तभी जाके वो हमारे लिए काम करता है. चाहे वो कोई भी religion हो, हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, बुद्धिज्म हो, कोई भी हो, हमारा belief उस चीज़ में जो हमारे अंदर की ये विश्वास की भावना है वो हमारे लिए वो रिजल्ट लेके आती है. हमारा faith, हमारा devotion, हमारा inner conviction. It is the hidden reason for their psychological truth. एंड साइकोलॉजिकल ट्रूथ क्या है कि द वे आर माइंड फंक्शंस. माइंड कैसे फंक्शन करता है? फेथ पे, ट्रस्ट पे, बिलीफ पे, रेपिटेशन पे. नॉट बिकॉज वन पाथ इज राइट एंड अनदर इज रॉन्ग. एक इंसान बोले, एक इंसान विद डीप फेथ फील्स एंड देन हर्ट्स, फील्स की मेरी बात को सुना जा रहा है. अब जिसके अंदर में बहुत गहराई से अगर ट्रस्ट की एंड फेथ की भावना होगी, अगर मैंने मेरा, अगर हम लोग बोलते भी है ना कि मेरे को इस देवी में, उस देवता में विश्वास है, किसी मंदिर में अगर हम जाते हैं या वैष्णो देवी चले गए या कहीं पे किसी मज़ार पे चले गए या किसी चर्च में चले गए, तो वहाँ पे जाने से ही क्या होता है, मेरे अंदर का एक फेथ एकदम ब्लॉसम हो जाता है. उस टाइम पे हम बहुत ये एक्टिवेटेड हो जाता है, हमको लगता है कि यस यहाँ जाने से मेरा काम बन जाएगा. तो उस जगह पे हम, और वही फेथ अगर मैं घर में बैठे भी अगर मेरा काम करता है तो तभी भी काम बनेगा. बट क्यों नहीं करता है कि मेरे को लगता है वहाँ जाऊँगी तब करेगा. तो वही चीज़ मेरे लिए काम करती है कि वहाँ जाने से ही होगा, और मैं वहाँ जाती हूँ और मेरा फेथ वो स्ट्रेंथन होता है, तब जाके वो चीज़ मेरे लिए काम करती है ना. तो दिस इज़ हाउ आवर माइंड वर्क्स. माइंड को हम एक सर्टेन इस तरह का पैटर्न्स चाहिए होता है. ये साइकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट दिस, फेथ का, बिलीफ का. इस तरह से हमारे माइंड के प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़े थे उस दिन, कि अगर जिस चीज़ को हम बार बार रिपीट करते हैं और रिपीट करते करते उसको अगर हम फील करने लगते हैं, बिलीव करने लगते हैं, देन दैट बिकम्स आवर रियलिटी, है ना. तो ये हमारे माइंड की साइकोलॉजी हमारे लिए काम करती है इस तरह से. सो लेट So the Buddhist, the Christian, the Muslim and the Jew may all get answers to their prayer in spite of the enormous differences among their stated belief. अब ये सारे के सारे जितने भी फेथ हैं, है ना, रिलीजन्स हैं, चाहे वो बुद्धिज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम्स हैं या जूस हैं या हिंदुइज़्म है, जितने भी हैं, तो अब देखेंगे एक रिलीजन में बोलेगा कि जैसे सिखिज़्म में है, वो लोग बाल नहीं कटाना चाहते हैं ना, कटाते ही नहीं है एकदम. सिखिज़्म का ये है,
जबकि हिंदुइज्म में बोलेगा ना कि बाल कटाना चाहिए, वो लोग हटा देते हैं, या कोई हम लोग टीका लगाना चाहते हैं, कोई और फेथ में टीका लगाने का ये नहीं है। तो सबके अपने अपने बिलीफ है, उनका टीका लगाने के पीछे कुछ रीज़न है। अब ये राइट है कि वो रॉन्ग है, कि वो रॉन्ग है कि ये राइट है, कि कुछ पता नहीं है। सबके अपने अपने रीजंस हैं जो भी प्रैक्टिसेस या रिचुअल्स वो लोग फॉलो करते हैं, बट सबके बिलीफ अलग अलग हैं, अपने फेथ अलग अलग हैं। लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट क्या हो रहा है कि हाउ कैन द बुद्धिस्ट इनके जो रिलीजन्स के नाम लिए मे ऑल गेट आंसर्स टू देयर पेयर्स इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस हैं इनके, बट इनके जो फॉलोअर्स होंगे इनके अपने जब कोई भी चीज़ मांगते हैं, डिस्पाइट द डिफरेंसेस इन देयर फेथ्स बिलीफ, उनका अपना क्यों सक्सेस होता है? क्योंकि उनको उस बात में विश्वास है, उनका अपना फेथ काम करता है। ये नहीं कि रिलीजन क्यों नहीं काम कर रहा। रिलीजन अगर काम करता तो एक ही रिलीजन फिर राइट होता कि भाई जिनके बाल लंबे हैं उन्हीं के लाइफ में सारा का सारा अच्छाइयाँ आएंगी। बाकी के जो लोग अगर बाल लंबाई वाले में ही अगर सच्चाई है, उसी में ही अगर है, तो सिर्फ सिख को फॉलो करने वालों के लाइफ में ही खुशियाँ होंगी, सक्सेस होगी, या स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ होगी। जो भी चाहिए उनको वो मिलेगा। बाकी के लोगों को तो फिर नहीं मिलना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर वो बिलीफ काम करता है, बट वो बिलीफ नहीं काम कर रहा है। बिलीफ ये काम करता है कि ये मेरी आस्था, मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास, दैट फीलिंग दैट आई हैव। बिलीव्स में, फेथ्स में, रिलीजन्स में कितना भी डिफरेंसेस है, अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग अलग अलग तरीके से कुछ भी करके, लेकिन क्योंकि उनके अंदर ये फेथ है, बिलीफ है, तब जाके उनके लिए वो चीज़ काम करती है, उनकी प्रेयर्स उनके लिए काम करती है। या एक ही है, अब इतने सारे रिलीजन्स के लोग, सपोजिंग एक बच्चा गिर गया, उस ट्रेंच में घुस गया अंदर, तो सारे के सारे रिलीजन्स वाले लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं ना, तो सबकी तो प्रेयर्स ने काम किया, तब तो जाके वो निकला बाहर। आज अगर वॉर हो रहा है तो इतने सारे लोग क्या एक ही रिलीजन के लोग प्रेयर कर रहे हैं उनके लिए? सारे के सारे लोग अपने अपने कर रहे, तो उनके अंदर की जो ये फीलिंग है ना कि मेरी प्रेयर में पावर है और ये काम करेगी, ये फीलिंग काम करती है, ये फेथ काम करता है, ये विश्वास काम करता है ना? So how can this be? Because the answer is that it is not because of the particular creed, religion, affiliation, ritual, ceremony, formula, liturgy, incantation, sacrifices or offerings, but solely because of beliefs or mental acceptance and receptivity about that for which they pray. उनके अंदर में बिलीफ है, मेंटल एक्सेप्टेंस है एंड रिसेप्टिविटी है। उनको पता है कि ये चीज़ हो जाएगी क्योंकि मैं मांग रहा हूँ और मेरा भगवान से कनेक्शन हो रहा है, मेरी प्रेयर उसके पास पहुँचेगी और मेरे अंदर में ये विश्वास है पूरा, मैं अंदर को लेने के लिए पूरा तैयार हूँ, रिसेप्टिव हूँ, तो वो चीज़ होती है। और ये सारे के सारे यही फीलिंग्स होती हैं, इसीलिए वो चीज़ आपके लिए आती है। तो यही चीज़ हमको फिर यहाँ भी अप्लाई करनी है अपने हर चीज़ में, और डेली लेवल पे करनी, डेली रूटीन लाइफ में करनी, देन इट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर अस। द लॉ ऑफ लाइफ इज़ द लॉ ऑफ बिलीफ. Belief can be summed up briefly as thought in your mind. As a person thinks, feels and believes, so is the condition of his or her mind, body and circumstances. है ना? जैसा जैसा इंसान सोचता है, फील करता है, ये चीज़ हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जैसा जैसा वो सोचेगा, महसूस करेगा, हमारा whatever the feeling state is within us, that is what we see gets reflected in our life and situations and people around us, right? So a technique, a methodology based on an understanding of what you are doing and why you are doing it will help you to bring about a subconscious embodiment of all the good things of life. कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, है ना? So it has to be a technique, a methodology कि ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ भी सक्सेस चाहिए या कुछ भी हमको अपना ऐसा रिजल्ट चाहिए, वो एक्सीडेंटल नहीं होगा या ऐसे कुछ भी हैपहज़र्ड वे में करने से नहीं होगा. इट हैज़ टू बी डन इन अ प्रॉपर मेथोडिकल वे. इफ़ यू फॉलो द राइट प्रोसेस यू गेट रिजल्ट. एंड व्हाट इज़ द टेक्निक अगेन? व्हाट यू थिंक, हाउ यू फील एंड हाउ यू इम्प्रेस द सबकॉन्शियस माइंड, है ना? आपकी सोचने का तरीका, आपका फील करने का तरीका, एंड आप उसको सबकॉन्शियस में कैसे डालते हो, बेस्ड ऑन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाई यू आर डूइंग, है ना? कितनी बार क्या होता है कि हम जो कर रहे हैं, अगर हमको अपने सबकॉन्शियस में अगर हमको डालना है, कुछ नए पैटर्न्स क्रिएट करने हैं, तो हम लोगों ने सुना है कि नए थॉट्स क्रिएट करेंगे, नए ये करेंगे तो हमारा
यू नो नए इम्प्रिंट्स और नए इम्प्रेशंस हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल पाएंगे. तो लेट्स डू एफर्मेशंस. तो एफर्मेशंस हम मेंटल लेवल पे तो बोल रहे हैं, हम फीलिंग लेवल पे अगर ला पाए हैं देन इट इज़ गोइंग टू वर्क, है ना. तो अभी खाली मेंटल लेवल पे कर रहे हैं और रोट वे में कर रहे हैं, मैकेनिकल वे में कर रहे हैं, उसके लिए फीलिंग नहीं आ रहा है, तो इट डजेंट वर्क. अब 1000 मैं एफर्मेशंस बोल लूँ तो यूनिवर्स को क्या आपकी लैंग्वेज समझ में आती है? आप हिंदी में बोल रहे हो एफर्मेशंस, इंग्लिश में बोल रहे हो, पंजाबी में, उर्दू में, किस में भी नहीं समझ में आता. उसको लैंग्वेज क्या समझ में आती है? आपकी फीलिंग की लैंग्वेज, आपके वाइब्रेशंस की लैंग्वेज समझ में आती है. तो वो जब आपके वाइब्रेशन के लेवल पे, फीलिंग के लेवल पे जाएगा, देन ओनली इट्स गोइंग टू क्रिएट द रिजल्ट फॉर यू, है ना. सो a technique, a methodology based on an understanding of what you are doing and why you are doing it will help you to bring about a subconscious embodiment of all the good things of life. Embodiment means मतलब it is no longer a thought, it becomes who you are. Subconscious embodiment, you बन जाओ. अगर मैं बोलता हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ, तो अभी मैं मेंटल लेवल पे बोल रही हूँ, वो फीलिंग लेवल पे जब आ जाए तो वो मुझे फील होगा कि अरे मैं तो सक्सेसफुल हूँ, और मुझे हर चीज़ में मुझे सक्सेसफुल फील आती है, वो वाली सक्सेस फील होती है. दैट बिकम्स सबकॉन्शियस एम्बॉडीमेंट, दैट फीलिंग जब तक वो लेवल पे नहीं आएगी. बट उसके लिए बोले कि मेरे को तो आती नहीं, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ? तो एटलीस्ट फेक इट टिल यू मेक इट. फेकिंग से करना शुरू करना पड़ता है ऑलवेज, राइट. सो डू इट, रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन. जितना जितना करते जाएंगे स्लोली इट विल बिकम पार्ट ऑफ आवर रियलिटी. Essentially, answered prayer is the realization of your heart's desired. तो हमारी जितनी भी प्रेयर्स हमारी आंसर होती हैं, वो क्या है? हमारे हार्ट की डिज़ायर है. हार्ट की डिज़ायर है मतलब मैंने यहाँ वहाँ से सुन के, 4 लोगों को देख के मैंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं कर लिया कि चलो मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, मैनिफेस्ट करती हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. मेरे अंदर की डिज़ायर क्या है? मेरे हार्ट की डिज़ायर क्या? मेरे अंदर को चाहिए क्या, है ना वो. एंड हमें कई बार पता नहीं होता. हम मैनिफेस्ट करने के लिए सोचते हैं, हम इतनी सारी क्लासेस अटेंड करते हैं तो हमको भी लगता है कि चलो लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. बट व्हाट इज़ माई ट्रू डिज़ायर, है ना. और हम हज़ारों चीज़ें फिर सोच लेंगे, हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए. अपनी एनर्जी को फोकस अगर करना है तो एक ही चीज़ पे या 2 चीज़ पे मैक्स टू मैक्स हम कर सकते हैं ना. हम हर चीज़ पे अगर करेंगे तो वो उतनी उतनी एनर्जी थोड़ी जाएगी, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे चली जाएगी ना, डीप लेवल में वो जाएगी नहीं, और नहीं जाएगी तो वो काम ही नहीं करेगी फिर. सो यू हैव टू फर्स्ट बी वेरी वेरी क्लियर कि मेरे हार्ट की डिज़ायर है क्या. तो जो भी आपकी प्रेयर्स आंसर होती है वो अपने आपकी हार्ट की डिज़ायर है, और यूनिवर्स को पता है आपकी हार्ट की डिज़ायर क्या है. तो कई बार अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो देन यू कैन सरेंडर दैट ऑल्सो टू यूनिवर्स. मुझे नहीं पता, मैं यही करती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि मैं कुछ मैनिफेस्ट करने बैठती हूँ तो मुझे 4 तरह की और बातें नज़र आती हैं. अच्छा सपोजिंग अगर ये हो गया, बिकॉज आई एक्चुअली फील यस्टरडे एक मैंने वीडियो भी शेयर किया था, तो आई रियली रेजोनेटेड इट विथ सो ब्यूटिफुली, क्योंकि वो मेरे इनर स्टेट को बहुत अच्छे से वो डिस्क्राइब कर पा रहा था. दैट सरदार जी वाला वीडियो इफ़ यू आर सी, यस्टरडे मैंने डाला था ना. तो हम मैनिफेस्ट करने जाते हैं, हम ये लेंगे वो लेंगे. अच्छा आपने आज सपोजिंग एक किसी ने घर मैनिफेस्ट किया, घर तो मैनिफेस्ट किया, आपने बहुत कुछ डीप में जाने की कोशिश की होगी कि मेरे को घर के अंदर ये चाहिए, घर की सराउंडिंग्स में ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए. बट फिर भी ऐसा कुछ रह जाएगा जो कि शायद आपके अगेंस्ट हो जाएगा, है ना. आपको जब वो घर मिल जाता है आपको लगेगा अरे ये तो मैंने ऐसा नहीं मांगा था, ये तो कुछ और प्रॉब्लम ही लेके आ गई. ये चीज़ घर तो आ गया बट इसके साथ 4 अलग से प्रॉब्लम्स भी आ गए. तो वी कैन नॉट थिंक इन दैट डेप्थ. उतनी तरह से हम सोच ही नहीं सकते. तो इससे बेस्ट है ना, मैं क्या करती हूँ भाई, मेरे को ज़रूरत तो है यूनिवर्स, मेरे को एक घर की ज़रूरत तो है, बट आई एम सरेंडरिंग टू यू. और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं कलकत्ता में ही घर लूँ कि कहीं और जाऊँ, मुझे ये नहीं जब समझ में आ रहा तो मैं आपको क्या बोलूँ. आप ही डिसाइड करो कि मुझे आप इसी घर में रखना चाह रहे हो, कि कहीं और देना चाह रहे हो, कि कहीं और लेके जाना चाह रहे हो, कलकत्ता में रखना चाह रहे हो. अप टू यू, आई एम गिविंग इट टू यू. एंड मैं तो रिलैक्सड हूँ. मेरे को जब तक यहाँ पे रखना है मैं बहुत खुश हूँ. इसके बाद जहाँ ले जाओगे मैं वहाँ भी खुश रहूँगी. आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सरेंडर्ड, आई एम इन एक्सेप्टेंस, आई एम अलाइंड, आई एम अवेलेबल, आई एम अलाउिंग माई सेल्फ to receive whatever you want to send my way, है ना. Okay, so चलो let us stop here today and
We will continue on Friday after this. ठीक है? Yes. Now anyone has any questions? तो questions या sharings आज के session से कुछ आपके takeaways हो तो you can share with about that also please. Yeah. बोलिएगा. Anybody wants to? You to raise your hands. मैंने unmute option दे दिया आप लोगों को. Anybody wants to talk? Please to raise your hands. Yeah, Tripti बोलो please. Yeah. हेलो मैम, Yes. थैंक यू Hi. सेशन तो बहुत ही अच्छा था और आप इतना फन वे में उसको समझाते हैं ना कि मतलब कि उसमें इंटरेस्ट आ जाता है ज्यादा, मतलब थोड़ा हेवी भी टॉपिक रहता है ना। हाँ अभी तो अभी हाँ, क्या है ना ये दीज आर द बेसिक्स यू नो अभी आपको समझ में क्यों मैं इतना डीप में जा रही हूँ कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली है क्या। बाद में खाली वो प्रेयर्स आएंगी उसको बस खाली रिपीट करो ये वो करो थिंग्स विल बिकम मच मोर सिंपलर राइट। क्यों अभी क्या है अभी इसको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा काम कैसे करता है और हमको क्या करना होगा और किस फीलिंग स्टेट में करना होगा तब जाके ये प्रेयर्स वगैरह जो बाद में हमको ये बताने वाले जो टेक्निक्स बताने वाले तभी हमको काम करेंगे। सो इनिशियली इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल हैवी बाद में सब कुछ यू नो थिंग्स आर गोइंग टू फॉल इन प्लेस। या मैम मेरे को रिक्वेस्ट करना था कि आप जैसे लास्ट टाइम हम लोग को ना ओपोनो प्रेयर और ये सब भी करवाते थे बीच में, तो इसमें भी जैसे आप तो खुद ही बोल रहे हैं ना कि मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है शॉर्ट, तो आप कुछ इसमें इनकॉर्पोरेट कर दीजिए प्लीज। अच्छा देखते हैं हाँ ठीक है वी विल सी। अभी तो इनिशियल अभी 2-3 दिन ही हुआ 2 ही दिन हुआ आज तो सेकेंड ही क्लास है ना तो वी विल सी ना एज एन हाउ इट प्रोग्रेसेस फ्रॉम हियर तो धीरे धीरे वी विल डेफिनेटली डू समथिंग और द अदर और इसमें बहुत आएगा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में इनके अंदर में बहुत कुछ है यू नो दैट इन इटसेल्फ इज गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स यू नो तो धीरे धीरे करके आएगा वो सब आता जाएगा डोंट वरी अपने आप ही होगा। लेट थिंग्स फॉल यू नो द वे दे हैव टू लेट्स सरेंडर यू नो एज एंड व्हेन। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स मैं अब ये कर दूंगी मैं ओपन कर दूंगी एंट्री अदरवाइज इट्स टेकिंग अप अ लॉट ऑफ गिविंग मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस यू नो वो बार बार उसमें ध्यान जा रहा है तो आई एम नॉट एबल टू फोकस हियर ऑल्सो। ठीक है यस मैं भी आपको यही बोलने वाली थी कि जूम को ही वैसे कर दीजिए जैसे या कोई भी एंटर कर ले जब मर्जी आए, सो दैट आप तो या बाद में हाँ। वही फिर एक बार वो स्लिप हो जाता माइंड से देन आई एम नॉट एबल टू कम बैक टू इट यू नो वो गया फिर भूल ही जाता है ना। और चलो मैम मुझे ये शेयरिंग करना था जो है ना महाशिवरात्रि का हम लोग ये किए ना हाँ वो अभी भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी तक, तो आई एम सो हैप्पी विद इट एंड बिकॉज ऑफ दैट होपोनोपोनो और फॉरगिवनेस प्रेयर, जैसे अगर किसी के संग मेरा बाता बाती या कोई चीज मुझे अच्छा नहीं भी लगता है तो इट हैज बिकम अ हैबिट कि नेक्स्ट टाइम जब हम होपोनोपोनो करते हैं तो आई यूजुअली यूज दैट, मतलब कि पर्सन कोई ना या फॉरगिवनेस मांगना होता है तो वही मांग लेती हूँ और देना होता है तो वही दे देती हूँ, तो वो जो ग्रज है अब वो कंटिन्यू ही नहीं होता है। एक तो अवेयरनेस हो जाता है कि ओ शिट क्यों फील किया ऐसे उसके लिए, क्यों ऐसे माइंड में भी चला, क्यों बोल दिए, और ये करने से फॉरगिवनेस करने से मन इतना हल्का हो जा रहा है लाइक उसके लिए फिर नेक्स्ट टाइम के लिए वो माइंड में उसके लिए कुछ बैड फीलिंग्स रह ही नहीं पा रहा। सो दैट इज व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग नो तृप्ति क्या हो रहा है कि एवरी डे इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने आई थिंक ये शिवरात्रि साधना के टाइम पे या पावर बुक के टाइम पे वी हैड डिस्कस कि एवरी डे जो भी आ रहा है ना हमारे अभी इस लाइफ के पास्ट में बचपन से अभी तक जितना बड़ा पास्ट चला गया 30, 40, 50, 60 जिसका जितना ईयर्स गया है उसको भी छोड़ दें तो आज के दिन में भी मैंने जो एक्सपीरियंसेस किए आज भी बहुत खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे या हमारी पास्ट लाइफ्स के भी हैं तो आज के या आज के अब तक के जितने हुए आई जस्ट यू नो मेक एन इंटेंशन एवरी डे कि आई जस्ट अलाउ देम टू बी रिलीज फ्रॉम माई सिस्टम आई एम अलाउिंग यू नो आई एम जस्ट रिलीजिंग देम फ्रॉम माई सिस्टम फ्रॉम माई बॉडी। जहाँ जहाँ याद है किसी को सॉरी बोलना है तो उसके साथ तो डायरेक्टली होपोनोपोनो कर लिया अंदर से उसको सॉरी दे दिया या ले लिया और जहाँ नहीं याद है कि ऐसा कुछ हो गया मुझसे मैं अपनी बॉडी को अलाउ कर रही हूँ कि प्लीज़ रिलीज करो सो दैट इट डज नॉट बिकम अगर मैं उसको लेके सो गई देन इट गोज इन टू माई सबकॉन्शियस माइंड
एंड बिकम्स पार्ट ऑफ एंड मेमोरी ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड, देन वो मेरे लिए तो है ही है, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे बाद की जो जितनी भी ये रहेंगी जनरेशन्स रहेंगी उनके लिए भी है, उनको भी पास ऑन होता जाता है ना. सो रिलीज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बर्न करना, रिलीज करना एवरी डे, है ना. Yes. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Tripti. Thank you. Yes, Komal, please unmute yourself. Kamal, unmute yourself, please. चेतना जी, आई जस्ट वांटेड टू शेयर, ये जो आपने लास्ट में कहा कि यू सरेंडर, बहुत बार ऐसे होते, दिस इज क्लैरिफाइड बिग डाउट कि आपके लॉजिकल माइंड की एक लिमिटेशन होती है. आप कुछ विजुअलाइज करते हो, यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, सो यू थिंक ऑफ 2 things 3 things, but you cannot visualize it completely. So this has cleared such a big self doubt, and which I've been thinking since a long time कि जो मैं विजुअलाइज करती हूँ पता नहीं मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, ये हमें नहीं पता. Yeah. So the best thing is कि you remain on that vibration of happiness, of joy, Yeah. contentment, and calmness. Yeah. And whatever, and that us universe, that whatever your way was meant for you in that way. So वो चीज एक बहुत जबरदस्त आज क्लियर हो गई. So I just wanted to thank you. Thank you. So very, one thing more, I keep practicing myself and keep reminding everybody, because this needs a reminder again and again for others as well as for myself, कि everything in this moment what is happening is the best in my best, highest good and my best interest. अब इस मोमेंट पे जो भी हो रहा है, भले बहुत बड़ी चैलेंज भी आ गया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी आ गया, उसको भी मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करना है, दैट दिस इज द बेस्ट दैट कुड हैव हैपेंड फॉर दिस मोमेंट टू हैपन, दिस चैलेंज टू कम इन माई लाइफ इन दिस वे, द वे इट हैज कम इन दिस मोमेंट, फॉर दिस टू appear in like this, so many universal forces are working to create this experience in my life, to appear the way it has appeared. तो मुझे उसको रिजेक्ट नहीं करना, मुझे उसको एक्सेप्ट करना है. एंड अदर देन दैट, वो चैलेंज आता है, उस मोमेंट के लिए आता है, चला जाता है. बाद का मोमेंट तो इस परफेक्ट मोमेंट है, देयर इज नथिंग हैपनिंग. सपोजिंग अगर किसी मोमेंट में चैलेंज आता है, उसके लिए भी मैं बता रही हूँ. अदरवाइज तो अभी अगर मेरी लाइफ में अगर कुछ दिन पहले कुछ गड़बड़ हुआ था किसी रिलेशनशिप में, या ऐसा कुछ लॉस हो गया या क्या, तो अभी मुझे क्या परेशान कर रहा है, उसकी मेमोरी परेशान कर रही है ना. वो तो जो होना था उस मोमेंट पे हुआ, और वो खत्म हो गई, बात खत्म हुई, मतलब उसका इम्पैक्ट जो भी था. अभी तो नहीं हो रहा है ना वो चीज. दिस मोमेंट इट इज नॉट हैपनिंग. वॉट इज डिस्टर्बिंग मी इन दिस मोमेंट? माई मेमोरी, माई थिंकिंग, माई रूमिनेटिंग, माई एडिंग स्टोरीज टू दैट incident that happened in that moment, that is creating problems. So should I continue doing that and create more problems for my future if I continue thinking and ruminating and feeling like that? Because what you feel you bring about. यही हम कर रहे हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड की बात यही कर रहे हैं कि अपनी फीलिंग हमारे नेक्स्ट मोमेंट, हमारा फ्यूचर क्रिएट कर रही है. तो इस मोमेंट को तो थैंक यू बोलो, इस मोमेंट को तो ये बहुत प्यार में आया है, बहुत खुशियां लेके आया है, बहुत जॉय लेके आया है. इस जॉय को तो जी लो, इसको प्यार को तो एक्सपीरियंस कर लो, इसको तो ऐसे जी लो जैसे ये जीना चाहिए. तो बार बार 5-6 years back, yeah, there's a fresh challenge, and मुझे, now that I think back, it was so challenging at that time, but maybe जिसको हम कहते हैं, now it's a matter of just looking back and trying to interpret it. I got into spirituality at that time, yeah, and I joined Shreya's that वो जो था 40-day master class जो थी, I did that. 28 days, I think. Yeah, 20. Master class जो थी, Yeah. and it changed the complete perspective of what I was going through. yes, And then I got into meditation, and it was such a, I always tell everyone around me in my family that वो एक shock था which I required at that time to Yeah. withdraw from those situations. yes. Otherwise आप So आओगे नहीं every spirituality में. You bad will never get into spirituality. have, one Universe, must accept. yeah, universe sends you these challenges
ओनली देन हम लोग वहाँ से थोड़ा विथड्रॉ करके देन वी टर्न टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, नहीं तो नहीं आएगा। तो यू नो आई वॉज टॉकिंग टू श्रेयांस अ फ्यू डेज बैक, नो श्रेयांस मेरी लाइफ में चैलेंजेस कम नहीं हो रहे हैं, द मोर आई एम getting deeper into it my challenges are increasing. वो बोला, you know, he also said and so many masters have told me and I actually connect with it so deeply कि ये मेरी बचपन से डिजायर है कि my sole purpose of this life is my spiritual growth. सब चीज़ें सेक्रीफाइस की जा सकती है, मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं से, तो चैलेंजेस तो आएंगे ही ना, चैलेंजेस नहीं आएंगे तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगी। और मेरी लाइफ में डेली चैलेंजेस हैं, डेली, अभी भी रुला देने वाले चैलेंजेस आ जाते हैं, इतने बड़े बड़े ब्रेकडाउन्स हैं अभी भी। तो ही सेट ना कि जब ये सोल की इतनी डीप डिजायर होती है तो वो यूनिवर्स उसके सामने वो लेके आएगा। भाई आप हर्डल्स क्रॉस नहीं करोगे, कैसे बोलोगे क्लास 5 से मैं सीधा ग्रेजुएशन क्रॉस कर लूँ, कैसे? ग्रेजुएशन के लेवल के लिए आपको तो बढ़ना पड़ेगा ना, आगे जाना पड़ेगा, तो एक एक स्टेप। और आपने डिसाइड किया भैया क्लास 5 से ग्रेजुएशन इसी लाइफ टाइम में कंप्लीट करना है, आप 5 से 6 करके चले जाते या 5 का 5 में ही रह जाते कि कंफर्टेबल लाइफ जीनी है, यही नहीं चाहिए मुझे और कुछ, रह जाते आप यहीं पे। बट आपने ही चूज़ किया है मुझे ग्रेजुएशन करना है, तो देने पड़ेंगे एग्जाम्स, तो देने पड़ेंगे, थैंक यू सो मच, है ना। यस रितिका, थैंक यू सो मच कमल, थैंक यू। हेलो चेतना जी, Yes. थैंक यू। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ, ओके, तो कहाँ से आप मेरे को, रितिका? वेयर आर यू फ्रॉम? मैं पंजाब, कपूरथला पंजाब से। अच्छा, ओके। तो मेरे को ना ये चीज थी दिमाग में कि हमेशा ऐसे होता था कि पहले बचपन में अगर नहीं, मतलब इतनी हिम्मत नहीं होती, या शुरू से सुना हुआ था कि भाई वीक है वीक है, ब्रदर मेरा बहुत एक्टिव होता था, तो वो मेरे को चीज आपकी सेशन से आज समझ आई कि जब अभी भी मैं जैसे काम करती हूँ, अगर किसी दिन पूरा फुल डे हेक्टिक है, इतना पूरा रात तक काम कर लिया, उससे मेरे को थकावट नहीं होती, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब मैं ऐसे सोचती हूँ ना, हाय मैंने कैसे काम कर लिया कि अब तो मैं थक जाऊंगी, तो वो दिमाग में कहीं सबकॉन्शियसली बैठा हुआ है, जैसे आपने बताया लॉ ऑफ बिलीफ, है ना, कि वो शायद पुराना बैठा हुआ है कि नहीं मैं तो अंदर से कमजोर हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं काम नहीं कर सकती, तो इसलिए शायद मतलब मेरे में काम करने से थकावट नहीं आती, लेकिन सोचने से बाद में थकावट आ जाती है, वो बिलीफ अंदर बैठा हुआ है ना। यस सारा का सारा, यस ऑफ कोर्स। तो यू नो हम लोगों ने इतनी सारी बातें सुनी हुई है ना, जैसे आपने बोला कि ये कमजोर है, अरे आई मीन लाइक मैंने कमजोर मान लिया बिकॉज वी ट्रस्ट आवर पेरेंट्स, आवर क्लोज वंस, वो हमारे लिए जो बोलते हैं वो हमारे लिए पत्थर की लकीर होती है, हम उसको सच मानते हैं एज अ चाइल्ड, क्योंकि हमें आवर वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय व्हाट दे आर टेलिंग अस, यू नो। मेरे को यू नो गो बैक इन टू दैट मेमोरी, आप अपने आप को सोचो, आप अभी भी अगर हम इमेजिन करें, आई एम अ न्यू बॉर्न बेबी, कुछ मंथ्स का होता है, मुझे सब कुछ समझ में आने लगता है, मैं लोगों को देखता हूँ तो मुझे कोई पता थोड़ी ना है कि ये कौन है, ये कौन है, मेरे लिए बस है एक कुछ दिख रहा है जिसको बाद में पता चलता है ये मेरी मम्मी है, इसको मेरे को मम्मी बोलना है, बट जब तक मुझे नहीं पता है वो मम्मी है, तो बस एक है, वो कोई चीज़ है, मैं हूँ वो चीज़ है, बस ये एक होनापन है, एक है जिसको बाद में पता चलता है ये डैडी या पापा है या आई है, तारे है, तात है, या जो भी है, जो भी बोलते हैं, ये दादा दादी, ये बाद में पता चलते हैं, उनके नाम हमें बाद में आते हैं, बट तब तक तो सिर्फ वो है। बाद में उनका नाम जुड़ता है, फिर मेरे को समझ में आता है कि जब ये नाम, ये वाला साउंड आएगा तो ये साउंड मेरे से कनेक्ट होती, तब मुझे रिएक्ट करना है, मुझे बताना है कि हाँ मुझे ऐसे करके जवाब देना है, मुझे ऐसे करके करना है, तब जाके ये धीरे धीरे चीज़ें बनती हैं। तो ये करके धीरे धीरे हमारी कंडीशनिंग शुरू होती है, धीरे धीरे करके फिर वो लोग जो वो बोलते हैं, हम उनकी भाषाओं को समझना शुरू करते हैं, फिर वो जो बोलते हैं हमारे बारे में, वट एवर दे आर सीइंग, बिकॉज दे आर द क्लोजेस्ट वन, वो जो बोलते हैं वो हमारे लिए अल्टीमेट ट्रूथ है और वो हमारी पर्सनैलिटी बन जाता है। बट अब उन्होंने बोला कि ये कमज़ोर है, पता नहीं किस बात, उनकी क्या कंडीशनिंग थी, किस कंडीशनिंग के बेस पे उन्होंने डिसाइड कर लिया, या ऐसे कैजुअली भी बोल दिया, तो मैंने तो अपने आप को कमज़ोर मान लिया, वो परमानेंटली मैंने अपने आप को बना लिया कि मैं नहीं कर सकती, मेरे अंदर में वो एबिलिटी नहीं है, मैं नहीं कर सकती। या एक हम किसी को एनकरेज करने के लिए भी बोल देते हैं, अगर उसके अंदर में एबिलिटी नहीं है, हम बोल देते हैं अरे ये तो बहुत बहादुर, ये तो सब काम करता है, सारा दिन काम करता, वो सारा दिन ही काम करता रहेगा। मैं उल्टी थी, आई वॉज सो मच फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, सो मच फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, सो मच फुल ऑफ दिस थिंग, मैं तो बस किसी चीज़ में नीचे गिरने वाली नहीं है ना, मैं तो कर लूँगी सब कुछ, मैं आज तक किए जा रही हूँ,
तो मैं करती रहती हूँ, पूरा दिन करती रहती हूँ. देन आई सेड नो, इनफ चेतना, नाउ यू सरेंडर टू यूनिवर्स एंड टेल यूनिवर्स कि आई एम अलाउइंग यू टू प्लीज प्रोवाइड सम कंफर्ट्स अराउंड मी. मुझे वो कंफर्ट्स दो, मुझे वो हेल्पिंग हैंड्स दो. अब आई वॉन्ट टू रिलैक्स, आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम रिसेप्टिव, मुझे भेजो वो सब कुछ. तो मैंने अभी तक नहीं वो अपने आप को प्रिपेयर किया था ना. अभी तो मिलके मैं कर सकती हूँ, मैं अकेले सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ, मैनेज करती हूँ. तो अकेले करवा रहा था यूनिवर्स, करो, क्योंकि मैंने अपने अंदर वो क्रिएट किया था कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूँगी, मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना. आई डोंट वॉन्ट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन ऑलवेज. मेरे अंदर इतना डर था, सबसे बड़ा डर तो यही, फियर्स आई वॉज टॉकिंग ना, सबसे बड़ा ये डर, यू नो, बिकॉज व्हेन माई सेकेंड चाइल्ड वॉज बॉर्न, फर्स्ट चाइल्ड के बाद भी मेरी जो यू नो वो आयाज वगैरह रखते हैं, तो वो कभी आए, कभी जाएं, कभी भाग जाएं, तो आई यूज्ड टू बी सो फेयरफुल. नहीं चाहिए मुझे, मैं खुद कर लूँगी, मैं पूरा दिन यू नो बच्चे को भी देख रही हूँ, उनका काम भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ. If I'm dependent on them, my body gets used to being in that comfort mode, and when they leave, now my body is simply refusing, क्योंकि उसको आदत पड़ गई कंफर्ट में रहने की. Then I said, no, I will not let my body get used to this comfort. मैं इसको ऐसे रखूंगी कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, क्योंकि डिपेंडेंस होने के बाद फिर जब ये स्टेट आता है तो ये नहीं समझ में आता है. ऐसे ही सेकंड वाले के बाद भी एक्सपीरियंस हुआ. देन आई डिसाइडेड नो, आई एम नॉट गोइंग टू कीप अ फुल टाइम मेड जो कि मेरा सारा दिन खाना भी बनाती है एंड करती है. एंड देन वो सालों तक जब वो किया, और सालों के बाद व्हेन दे लेफ्ट, ओ गॉड, माई बॉडी वॉज नॉट विलिंग टू एंटर द किचन, नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग. आई सेड तौबा, आई विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन देम एनी मोर. दे विल कम एज हेल्पर्स, थोड़ा बहुत काम करके दे के चली जाएगी. आई विल नॉट गिव देम द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर. और तब से I've been doing. So I'm not getting a good one also. But I said no, enough is enough. Surrender universe. मेरे से अब नहीं होता, मैं थक गई हूँ. अब मुझे कुछ सपोर्ट चाहिए, मुझे कंफर्ट चाहिए. तो what you decide अपने अंदर, मैं जो मान लेती हूँ, मैं जो डिसाइड कर लेती हूँ, तो यूनिवर्स खाली वो बोल रहा है कि ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पावर क्या है, पावर ऑफ क्रिएशन विदाउट रेजिस्टेंस, फुल एक्सेप्टेंस के साथ, विदाउट कंप्लेंट्स के साथ, विदाउट रेजिस्टेंस की. आप इसके अंदर जो डालते हो वो हाँ बोलता है. एक जीनी है, एक जीनी जैसे वो अलादीन वाला था ना, अलादीन हिमसेल्फ इज छोटा सा, जीनी कितना बड़ा है, ह्यूज ना, फुल ऑफ पावर. उसको जो वो बोलता है वो 2 मिनट में रेडी कर देता है. उसको कभी ना नहीं बोलता, गलत नहीं बोलता. वो तुम उसके लिए बोलोगे कि एक सूखा जंगल दे दो, वो बोलेगा सूखा जंगल हाजिर है. यहाँ बोलोगे हरा भरा गार्डन दे दो, वो बोले हरा भरा गार्डन हाजिर है ना. तो ये सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक दैट जीनी विद दैट मच पावर. कोई रेजिस्टेंस नहीं, आप उसको जो बोलोगे वो देगा आपको. मैंने बोला था कि मुझे नहीं चाहिए हेल्पर, वो बोलता था नहीं दूंगा. अब मैं बोलती हूँ मुझे हेल्पर चाहिए, वो बोलता है ले लो. ठीक है, सब कुछ है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास. हम उसको अलाउ करें कि हमको चाहिए क्या, क्लैरिटी के साथ, कि मेरे हार्ट की डिज़ायर क्या है. मेरे हार्ट की डिज़ायर अभी एक नया घर नहीं है, मेरे हार्ट की डिज़ायर है कि मुझे अच्छी मेड्स हो जो मेरे घर का काम करें, और मैं पूरा अपना फोकस यहाँ पे लेके आऊँ, बिकॉज मुझे इसमें मज़ा आ रहा है ज़्यादा. दिस इज़ माई हार्ट्स डिज़ायर इज. ठीक है, क्लैरिटी ना. इन सब चीज़ों से जब क्लैरिटी आती तो हम अपने आप को समझ पाते कि हमको चाहिए क्या. और हम अपने आप को, बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स होंगे, बहुत सारी ऐसी कंडीशनिंग होंगी, बचपन से हमने बहुत कुछ ऐसा सुना है जो कि हमने मान लिया अपने बारे में या अपने आसपास के लोगों के बारे में, विच इज़ ऑल कंडीशनिंग. और उस कंडीशनिंग की वजह से शायद बहुत सारे चैलेंजेस हम अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, और हमें समझ में आता है कि कौन सा ऐसा पैटर्न है जो मेरे अगेंस्ट जा रहा है, या जो मेरे बिहेवियर को ऐसा लेके आ रहा है जिसकी वजह से चैलेंजेस दूसरों की लाइफ में आ रहे हैं. तो मुझे वहाँ पे कौन सा बदलाव लाने की ज़रूरत है, तो वो मैं कैसे ला सकती हूँ. दिस बुक इज़ गोइंग टू हेल्प अस विद दैट, है ना. क्लियर रितिका, अनम्यूट करिए. क्लियर है. हाँ जी. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चंस? किसी और के पास कोई क्वेश्चंस है? नहीं, है ना. तो अभी लेट्स मूव एंड वी विल मीट ऑन फ्राइडे. एंड नेक्स्ट वीक अगेन आई विल बी ट्रेवलिंग फॉर अ फ्यू डेज, तो शायद मंडे का क्लास करके एंड देन 2 क्लासेस शायद ऑफ करनी पड़ेंगी. आई विल सी अकॉर्डिंगली, आई विल मेक एन अनाउंसमेंट. So thank you for joining today everyone. We will meet again, and bye for now. Have a wonderful day and see you all back on
Friday. Thank you and bye. Thank you, ma'am. Thank you so Thank much. you. Thank you so much.